All right. Hi, everyone. Cricket Shenanigans is back. We've been away for a few months. Now you're going to see us more regularly, and we have Jwalin and Somu who have joined us today as well. Today, of course, we are going to discuss uh, the turmoil in Indian cricket. Indian cricket has gone completely topsy-turvy over the last 2.5 months. So we are going to discuss that and anything else that the panelists on this call deem fit. Of course, while we are doing this podcast, India is still trying to battle in the last one day, and it looks like India is going to lose. So, guys, let's get started. Jwalin, Somu, first, what do you think is going to happen today? No, today I think we might get to a respectable total, but I don't think we will win this match. It doesn't look like right now. I mean, yeah, we lost all of I them. think And to my biggest surprise, I just don't know the. It's just that the body language also on the field because I woke up early morning to watch. It didn't look like a team. There was no hurdles. There was nothing. There were two or three people going high fiving each other. Then someone else is somewhere. It was very like visibly something was different. No matter what they say, something seemed visibly different. Everyone was trying to play really well for their own spot and everything, but just The funny thing is, my dad and I were discussing the exact same thing yesterday, right? And and I mean, in my mind, there were a lot of people who used to criticize Virat Kohli for his aggression and over the top behavior, but some of the same people were yesterday, kind of missing Virat Kohli's aggression on the field and all that. And I mean, jokes aside, I think uh, nothing succeeds like success, right? Yeah. Uh, I mean, I think if Rahul would have won, people would have not spoken about his body language. But with that said, Rahul का कुछ ज़्यादा ही ढीला है body language. हाँ आज भी आउट होने के बाद ऐसे लग रहा था मैच ही हार गए हैं. नहीं, because उसका मतलब वो देखो एक चीज है, इवन धोनी भी ही वाज नॉट ओवर द टॉप, बट धोनी का एटलीस्ट एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज नॉट ओवर द टॉप, बट एक थोड़ा लगता था. राहुल का तो लगता है वो पूरी टाइम डिप्रेस है, ऐसा लगता है. So I think he definitely needs to work on his body language. Of course, we'll talk about generally how people have been playing as well, but I think body language definitely Rahul ka body language has to improve a little bit. I'm not saying it has to become like Virat Kohli or Saurav Ganguly, but at least thoda or energy. I think more than anything else, not even aggression, thoda or energy. He needs to bring more धोनी energy. का कुछ भी हो लेकिन कितना भी सिचुएशन बुरा हो उसके फेस पे कुछ दिखता नहीं था एकदम ही कुछ भी. नहीं, but Somu Tirko, if you remember, towards the end of his reign, that is what people, especially test matches में, that is what people used to also complain about. जो one day में और T20 में उसका था कि he was very cool under pressure, वो सब ठीक था. Test match में people used to interpret it completely different, as if he was indifferent. So I think a lot of it depends on how successful you are. When you are winning, a lot of your qualities seem positive. When you're not winning, then कोहली का भी देख लो, जब जीत रहा था, बहुत कर रहा था, people were all gung ho over it, right? But when Kohli starts losing, your batting form chala gaya, then that is taken as negative. So I think success has a lot to do with that. Jolin? yeah. So मुझे भी ऐसा लग रहा है कि it would be miracle if we win today's match, but I am still hopeful with Deepak Chahar in play. Correct. So it's not. I would say like it's not impossible at this point in time. Obviously, the run rate required is more than 6. You just need a couple of good overs and you are in game. So I think someone has to stay other end. Jayant Yadav also got out, na? Yeah. So still we have 3 wickets. Correct. It's like the wicket is not like a minefield. Yeah. So I think you can score this runs. It's not a. I would say Deepak Chahar is an able batsman. It's just that we have to dig deep in the sense. Yeah. And then we have to go until 50th over. You never know what happens, correct? But yeah, looks difficult. Like I would say give 10%, 5% chance, but it is not out of the hand yet. Of course, so of it's course. not.
64 or 46. Yeah. And then for a change, I was really feeling good. I was watching live today, being Sunday. Chase Master was at it again. Unfortunately, Nemesis leg spinner, he got out. Yeah, unfortunate. But I thought he was up for a century, the way he was But playing. he in my mind, he missed 2 centuries this series, right? Yeah. So he was playing pure calculated, his kind of brand cricket. So I think his form is not away. I think it's see, not scoring century is not a big deal. Yeah, he's scoring 50 like every now and then, correct? So I'm not that much worried about his form. Yeah, the problem is, his runs are not transpiring or helping us win the game, correct? So that's a problem, which never used to happen earlier. Even if you score 50, we used to win. But unfortunately, I think we're missing out a couple of key players. I think once Rohit and probably couple of more guys back in the game, I think will again But kind of I in a mean, winning. if you really look at it, India's full team is playing other than Rohit. I mean, who else is missing? Yeah. So it's not about like we don't have it's not a weak team or anything like that. But the problem is we haven't played one day for quite some time. Also, I think we are coming out of Test series, which I think was a surprise or shocker for some of us. We lost 2 matches, so I think it's all in the mind as well. And this one day matches is not going to help us anyway. There's a T20 World Cup lined up, correct? So we don't have to read too much into it. It's one of those bad days, correct, or probably bad series. So, but still, I think lessons learned. We have to move on. I think it's a really bad start for Rahul, as both the Rahuls, I would say, KL Rahul and Rahul Dravid, overseas tour, and it's a really bad way to get started your captaincy career or I would say a coach career, correct? But anyway, lessons learned, and I think they probably will improve from now on. So I'm hopeful. We don't have to worry about it, but definitely what happened in last couple of months probably not a good sign for Indian cricket. No, I'll tell you. I think in my mind, India's biggest problem, be it any format, is the middle order batting. India all of a sudden has, and India is to be blamed for that because, I mean, if you start with Test matches first, problem was, I know it's you want to give chances to Rahane and Pujara, but I think India took it too far, and as a result, India ended up not developing any number 3 and number 4. Because that genuinely was a problem, right? And I mean, if you remember, I think again, I know I keep going back to in my mind, which used to be my favorite Indian team back in the days. They had some, the batsmen were more flexible as well, because if you remember when Australia toured in 2001, Dravid was going through a lean patch. They could easily switch Lakshman and Dravid. They swapped the positions. But now with these guys, looks like they just can bat at only one position, right? Pujara and this guy Rahane were out of form for so long. Yet, we didn't do anything. We didn't bring anyone else. We didn't swap their batting positions. We kept trying to put them in the same spot, and it was not working. So I think India has to be blamed for that. And similarly, in the middle order for T20 and one days, I mean, India is really struggling with 4 and 5 because Surya somehow, I think, deserves more chances. Now, even now, he's not a regular. I mean, they made him sit out in the first 2 games. And honestly, Shreyas Iyer, I know a lot of people like him. I like him on Indian pitches. But almost gone. Sorry. For me, he's not delivered on foreign soil, and he's been caught short even this time. I mean, the moment he comes to the wicket, they start bowling short to him, and he doesn't play them very well. I'm worried that people are saying he's our next Test player as well, right? But if he can't deal with short pitch bowling in one days, how is he going to deal with it in Test matches? Matlab, if you remember, back in the days, हमारा team में बोलते थे short ball, Ganguly नहीं खेलता, Sehwag नहीं खेलता. But one day में they never had a problem. One day में they were giving back solid. मतलब short ball को भी मार रहे थे अच्छा खासा. But these guys are not able to manage that. 6 मारा उसने, Deepak Chahar ने. These guys can't even manage it in limited overs cricket. I mean, that's a shame. सुरेश रैना को बोलते थे, even सुरेश रैना भी वनडे में तो मैनेज कर ही लेता था शॉर्ट बॉल. Correct. These guys can't even manage in the shorter format. Yeah.
Correct. So I think one day series में I have a strong point मतलब why I didn't like the way. I think maybe it's a Rahul's fault or whoever is Rahul Dravid's fault, correct? The way I think the batting lineup see anyway, so KL Rahul was not opening in the previous series because we had two different openers, correct? You had Rituraj Gaikwad in your squad. He is in the life like form of his life. I think after first match or second match, you realize your middle model is struggling. You should have batted in the middle order and have someone else open it. That probably would have created a balance. If not, at least Pant should have gone one or two position down. If you are giving that opportunity to Pant playing at number 4, then there is not a single experienced player after Pant, correct? Everyone is like less than 10 12 matches. Iyer, Venkatesh Iyer, Shreyas Iyer, or even perhaps Surya Kumar Yadav. So I think the lower middle order is so weak. I think someone should have batted Rahul or Pant little deep in the middle order, and I think they would have given new guy a opening slot, or probably someone else open it, correct, along with Dhawan. That could have probably But would have helped. I tell you, the Ashwin, I mean, at the best, Gaikwad could have come in the third game. I mean, how can you not bat Rahul and Dhawan at the top if both are available, right? So I made 2 points, correct? Maybe Rahul was like afterthought, according to me, but the Pant batted little deeper. I think a fourth position given to Pant, it's not justified. That I agree. That I agree because I know Pant played an outstanding innings. Even with that said, I don't think he can be a number 4. A number 4 has to be a more reliable batsman, right? Correct. Wow, 2 sixes. And now it is run a ball, So I think we're back in the business. 41 of 38, yeah. Bumrah plays more sensibly nowadays. He doesn't just swing. He's become a little more sensible than before. He's a captaincy material. I think he's a better captain, I would say, than KL Rahul. Unfortunately, everyone says KL Rahul, but anyway. No, but again, I somehow I agree. I mean, right now he's not a good captain, but honestly, captaincy is something that you learn. I mean, if you really look at it, I mean, there are a lot of good captains when they started. I mean, you have to give him time. You have to give him some more time to judge his captaincy. I think we are jumping. Whatever he has done so far is debacle, like Punjab Kings, correct? So it's not like he is doing that role for the first time. So it's unfortunate that I'm not saying. Did Punjab lose because of his captaincy? I don't think so. See, problem is confidence goes down, correct? It's not about that. So you have to blame captain and coach for the whatever the outcome at the end of the day. And the last 2 or 3 seasons, he is the best batsman probably in IPL, correct? But he couldn't help team. And in T20, if you are the highest scorer for 2 or 3 seasons and your team is not in top 4, then it's a serious issue with the team and your strategy. I agree. The issue is with the team. It's not so much. And the thing is, if you are batting really well, and if you recall, he single-handedly was whatever games they would win, most of it he used to win it on his own. Correct. He had a bad team, if you really ask me. I mean, Mayank Agarwal was possibly the only other fairly reliable player. Even Mayank Agarwal is not reliable. Yeah, correct. Yeah, anyway, I mean to say, maybe for Rahul also it was a surprise, correct? It's not like he was slated to captain both in Test and One Day. Actually, it's an injury of Rohit Sharma and the way Kohli retired, correct? Things. I mean, for him also, it was not I would say, an ideal situation to lead the team, correct? It was like forced upon him. So, and I don't think he's going to be the captain right now. Right? I mean, Rohit, once Rohit is back, I think Rohit will get the captaincy. I don't know whether Rohit will be back even for next series, correct? I don't know whether he has recovered or not. But for the time being, I guess it's going to be Rahul. But if Rohit is not fit, I think the only issue I see with Rohit in Test matches is fitness, right? His fitness is very poor, and what's surprising to me is he's batting really well, right? I mean, over the last 2-3 years. So you would imagine that, like, if you remember Kohli, when he started getting into his peak, even physically he reached his peak, and he put in so much of effort. Rohit somehow, physically he's not putting in that effort, right? You can still see him. He definitely is not lean. Correct. And the difference is, a lot of people say even Pant is overweight, but Pant is a lot younger.
right? So, yeah, true. So again, I'm not saying, I mean, even Pant needs to lose weight, and I think he has in the last month and a half. I've seen, if you remember, when he came back for the IPL, oh my God, he was I think at least 5-10 kgs heavier. But because he's still young, he can, maybe still overcome that. But Rohit at his age, if he has to perform, I think for his fitness sake, he needs to spend more time on. Yeah, I'll say Rohit will skip even the West Indies series if he's not fully fit for him to be available for IPL, because IPL would be an ideal preparation for the T20 World Cup, correct? So I don't think so. I mean, even if he's slightest unfit, he will play against West Indies. Again, I think Rahul has to lead the team, Yeah, he will and make the then team, and India nowadays they make dust bowls. India will make dust bowls, and then you correct, don't have to really captain the side, right? You can just correct, leave Ashwin, Jadeja, and Akshar Patel, and they will correct. cause havoc. Yeah. So the So T20 World Cup, what you said, Jalin, Abhishek, have you heard anything of the matches in Fort Lauderdale area? it's इस in बार Australia. इस बार थोड़ी है, वो तो नेक्स्ट 224 में है ना. वो यहाँ next अभी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट आई थिंक आवर बॉलर्स होपफुली विल फेयर बेटर विद द लॉन्गर बाउंड्रीज, इतना मार नहीं खाएंगे. हाँ, वापस इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है हमारे पूल में, वापस वैसे ही हो गया. तो बट एनीवे, आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा. आई थिंक द वे थिंग्स आर राइट नाउ. Surprisingly, Australia is the only country where they don't change their bowling attack by the type, like kind of I would say like T20 ho या one day ho या test match, they have the top bowlers bowling. Maybe they change the leg spinner, off spinner, but not नेक्स्ट beyond वो that. Zampa will come in, right? Zampa will. हाँ, but तो वो लोग का वो है, फिटनेस सुप्रीम है. आई थिंक नहीं, but अमेजिंग है वो लोग. honestly, T20 में I would still say England also will be a strong team. I know Test West में छोड़ दो, England is very strong in T20. वो तो उनका किस्मत खराब था, वो हार गए वर्ल्ड कप में. I mean, they were the best side. नहीं, ये बीइंग होम सीरीज करेगा. ऑस्ट्रेलिया में एक एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया को, मतलब इंग्लैंड तो एनी डे जीत ही सकता है. लाइक दे सुप्रीमली स्ट्रांग टीम है. अनफॉर्चुनेट वो मिच मार्क्स को उसका दिन था और उसने मार दिया पूरा सब रन. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल हैव एन अपर हैंड. इंडिया तो बहुत ही लॉन्ग मतलब शॉट है अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 जीतना. तो पता नहीं. देखो यार, ये मैच तो काफी क्लोज हो गया है. आई डोंट नो, मी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बट आई थिंक दिस इज नहीं, लाइक नाउ अभी तो you are right. I mean, it is close right now. या मतलब आई नेवर थॉट इतना क्लोज जाएगा, बट आई थिंक दीपक कैन प्ले दैट. आई कैन टेल यू, वो देखा था and honestly, I was always a big fan of Bhuvaneshwar Kumar, but I think he's done now. उसका injuries have taken a big toll on him. हाँ, मतलब उसका फॉर्म भी नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके मतलब खेलोगे नहीं होता. उसका मुझे एक्चुअली आई फेल्ट एज इफ उसने वर्ल्ड कप में भी ठीक बॉलिंग किया. आई मीन विदाउट बीइंग एक्सेप्शनल, ही वाजंट एक्सेप्शनल, राइट? तो उसमें भी उसने ठीक किया. एंड पता नहीं यार, आई मीन मतलब मुझे तो ऐसा बॉलिंग में देख, अभी बुमराह भी मिनेसिंग नहीं लग रहा था वनडे में, तो इट्स ओके. मतलब like but it's not like I agree, Bumrah was not himself, but he was still by far the best यार. Even last game में मैं देख रहा था, सब लोगों ने इतना मार खाया, वो 10 overs 37 था फिर भी. and उसको बंदा दम लगा रहा था. even end में मैं देख रहा था, जब खत्म हो गया गेम, he was giving his 200%. बट उसको इंजर करने का पूरा प्लान है. मुझे समझ में नहीं आता ऐसे फालतू सीरीज उसको क्यों खिला रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स रियली बैड. वो अभी सिराज बैठा हुआ है, फिर वो कौन नवदीप सैनी बैठा हुआ है, उसको बुमराह को क्यों खिला रहे हैं ऐसा? तुम लोग सीरीज हार गए आज गेम में तो आज तो नहीं खिलाना चाहिए था. आज वही बोला, 10 ओवर बेचारे से डलवा, इंजर्ड हो जाएगा तो क्या पागलपन है. मुझे समझ में नहीं आया आज का. तो नहीं यार, प्रॉब्लम ये है कि बट सैनी को दे कुड हैव प्लेड बिकॉज़ सिराज का भी तो ही इज नर्सिंग एन इंजरी ना. तो फिर रखा क्यों? बोल दो इंजरी निकाल दो, वापस भेज दो. उसको बोला कि ही इज रिकवर्ड. वो केएल राहुल बोलता है कि इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट इंजरी आफ्टर टेस्ट. मतलब तुमको मतलब आरसीबी के लिए बचा के रखना ऐसा फंडा है क्या? मुंबई इंडियन वाले की लगा दो तुम, और आरसीबी ऐसा थोड़ी होता है. बट और एक चीज, इफ यू रियली लुक एट इट, तेरा इंडियन पब्लिक भी ऐसा है. ऑलरेडी द्रविड़ को गाली पड़ना चालू हो गया. अरे यार, अब भी तो टीम लिया उसने,
उसको तुम कैसे बोल सकते हो यार, कम ऑन, द्रविड़ को गाली नहीं दे सकते, इट्स टू अर्ली। मतलब सही है वो, सी टू एन एक्सटेंट उसके पे भी ब्लेम आएगा, जैसे कि कोहली पे आ रहा है करे, क्योंकि तुम हारते हो तो किसी ना किसी को स्केपगोट बनना है, तो कोच कोच तो बनेगा ही। कोच को इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में यू कांट ब्लेम हिम, कम ऑन। अरे ब्लेम नहीं देंगे, बट आई थिंक दे सी प्रॉब्लम इज कि ऑलरेडी लिगेसी बड़ा है, करेक्ट, द वे इंडिया परफॉर्म्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स और 3 years, तो डिफिकल्ट है ना, मतलब सेम लेवल पे वन टीम कैन नॉट प्ले फॉर लाइक ये सब हर स्पोर्ट्स में ही होता है, और वो इसमें इसलिए भी होता है यहाँ पे भी फुटबॉल में कि नया कोच लिया और इतना बड़ा उसको लेके हंगामा किया कि क्या अमेजिंग कोच मिला, और पहले 4 या 5 और 6 गेम्स तक भी कभी कभी निकाल नहीं तोमो, इट्स वेरी डिफरेंट, सॉकर, अमेरिकन फुटबॉल एंड क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट। नहीं बट बिकॉज अमेरिकन फुटबॉल, सॉकर में कोच इज डिसाइडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट? एवरी प्ले, स्पेशली अमेरिकन फुटबॉल में, एवरी प्ले इज डिसाइडेड बाय द कोच. That is right. Coach will get the blame there, not in cricket. Cricket में on field everything the captain is handling. अमेरिकन में कोच सिर्फ नहीं, क्वार्टरबैक का भी बहुत ये होता है। हाँ रहता है, बट सारा प्ले पूरा कोच बनाता है ऑन पेपर, वो भी। हाँ वो तो सही है। हाँ, but that's not in cricket ना। क्रिकेट में तो it's play by play। बट क्वार्टरबैक तो सिर्फ आधा टाइम में रहता है ना, डिफेंस के टाइम तो क्वार्टरबैक रहता भी नहीं है, तो आई थिंक इट इज अप टू कोच ओनली। तो अलग से रहता भी है ना डिफेंसिव कोच। हाँ रहता है, बट आई थिंक क्वार्टरबैक का तो मतलब ऐसा रहता है बहुत सारी टीम में, तो क्वार्टरबैक को बेचारे को रहने भी नहीं मिलता है, लाइक मोर देन हाफ ऑफ टाइम। जैसे जो हेड कोच होता है उसको तो प्रीवियस उसका अच्छी चीजें देख के ही लिया है, तो 4-5 गेम में तुम्हारा माइंड चेंज कर देते हो। नहीं वही है ना, इसलिए लॉट ऑफ पीपल पहले तो कुछ अच्छा किया है इसलिए इतना बहुत बड़ा चढ़ा के लिया है उसको कोच। नहीं बट यही है कि लॉट ऑफ पीपल टेंड टू मेक दैट मिस्टेक कि अमेरिकन फुटबॉल और सॉकर को इक्वेट करते हैं क्रिकेट से। कोच में इट कैन नॉट बी, क्रिकेट इज अ गेम, वहां पे कोच का रोल ज्यादा होता है इन विनिंग अ गेम, इन दोस गेम्स, बट हाँ एग्जैक्टली, एंड नहीं इसलिए बोलते हैं कि 2-3 गेम में डिसाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता मुझे। क्रिकेट जो है, क्रिकेट ऐसा चीज है कि क्रिकेट में इट इज अ कैप्टन शो, आई मीन द कोच हैज टू बी इन द बैकग्राउंड। द सिमिलरिटी आई वाज ड्राइंग वाज, देखो ये गेम्स भी है और क्रिकेट भी है, अभी इतना कमर्शियलाइज हो चुके हैं ये गेम, तो जो स्पॉन्सर्स है, जो बाकी सब जो डायनामिक्स प्ले होता है, उसमें भी बहुत और प्रेशर आ जाता है कि नॉट ऑलवेज दे थिंक कि इसको हटा दो कोच को, इधर अमेरिकन इसमें भी देख लो, या जो इधर प्रीमियर लीग हो कहीं भी हो, तो वो हटा देते हैं, लेकिन प्रेशर तो रहता है क्योंकि every fan wants their team to win basically। नहीं वो that is all true, but क्रिकेट में it should be कि कोच को ना इतना ज्यादा एक्कोलेड मिलना चाहिए, कोच को तो मतलब कोच को ना इतना क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए क्रिकेट में। क्रिकेट में द्रविड़ जब रोहित शर्मा ने किए कुछ मैचेस जब खेले, सारे ही तो जीते ना हम लोग, कैप्टन रोहित शर्मा और द्रविड़ ने स्टार्ट किया एज अ कोच, तब तो कोई नहीं बोल रहा था ना, अभी किस ईयर, तब तो कोई नहीं बोल रहा था द्रविड़ के बारे में कुछ, जब सारे मैच। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब वही क्रिकेट में यू कैन नॉट, आई मीन क्रिकेट में कोच हैज टू बी इन द बैकग्राउंड, सो राहुल द्रविड़ को अभी गाली देना इज स्टुपिडिटी। अभी द्रविड़ के लिए यही हो रहा है, आई थिंक द थिंग इज जो बाकी सारी खबरें उठ रही है ना टीम को लेके, सो एज अ कोच इन अ वे यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दोस थिंग्स आल्सो, अदर देन द कैप्टन यू आर सपोज्ड टू मेक श्योर यू कीप एवरीवन यूनिफाइड एंड एज अ टीम, थोड़ा वो मुझे लैकिंग लग रहा है। ऐसे नहीं बट खेल तो रहे सब, बट एक कोच को एकदम आके अपना सेकंड सीरीज में यू आर एक्सपेक्टिंग हिम थोड़ी चेंज कर देगा, ये तो दिस शुड हैव कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट कोच, राइट? इतना कल्चर, अभी द्रविड़ को ब्लेम करना इसके लिए इज वेरी वेरी स्टूपिड इन माय माइंड। वो तो सेटल डाउन कर रहा है अभी उसका, बट ये मैच ना जीतने की वजह से द्रविड़ को ब्लेम करना तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आता ये। एग्जैक्टली। अभी देखो क्या बोले, अभी दीपक चहर बैटिंग करके मैच जिताएगा तो यू हैव टू ब्लेम आवर बैट्समैन ओनली, और किसी को नहीं। It's really stupid। I am all for blaming the players who are actually playing। कोच नहीं, blaming the batsman, batsman बॉलर भी नहीं। हाँ I agree and बैटिंग ही तो फेल हुआ यार। इंडियन प्लेयर लोग स्पिन को खेल नहीं पा रहे, देयर इंडियन स्पिनर्स हैव बीन आउटबोल्ड इन ऑल द 3 गेम्स। इससे क्या स्टुपिडिटी ज्यादा, साउथ अफ्रीका में जाके दो इंडियन बैट्समैन जो सो कॉल्ड बड़े बड़े प्लेयर, कोहली तो पॉसिबली वर्स्ट खेलता है स्पिन को अभी। मतलब वो महाराज भी बोलता होगा जब कोहली बैटिंग को आता है कि अरे मुझे दो ना, बहू मैं डालता हूँ ना मुझे। नहीं फॉरगेट अबाउट
मेरा ग्राहक आ गया है दुकान में जाकर। बट फॉरगेट अबाउट कोहली, वो जो आयदन मकरम, वो लोग का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो 8 ओवर में 30-35 रन लगे, एक विकेट लेता है। मतलब सूर्य कुमार यादव को तो पहले मैच से ही खिलाना चाहिए था। हम जीत ही जाते, क्योंकि वो तो अकरम को खड़ा ही नहीं रखता था, मारता था। लाइक स्पिनर के सामने तो मारना ही है तुमको। लाइक वो भी पार्ट टाइम स्पिनर है। इट वाज अमेजिंग कि वो कैसे उसने फर्स्ट 2 मैचेस में बॉलिंग किया, मकरम ने। नहीं, and एनीवे Shreyas Iyer भी again, he needs to prove himself on these kind of pitches. वो Indian pitches में ठीक है। अभी लेस देन 6 हो गया, बहुत ही लेस देन रन बॉल हो गया। गया श्रेयस अरे अय्यर गया मत कर। बुमराह आउट हो गया। वो ठीक है, चलता है, फिर भी जीतेंगे। क्या बिलो पे देख रहा है कि अभी कैमरा देखा तुझे? देख, बेटर है ना कैमरा? बिलो पे देख रहा है, किधर देख रहा है? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मैं तो बिलो पे देख रहा हूँ, अभी आउट हुआ अभी मेरा। मैं अविक तू म्यूट पे है। अभी कुछ दूसरा ही देख रहा है, लग रहा है। आ गया Joining उसका शायद नेट कनेक्शन। बट एनीवे, आई थिंक जीत जाएंगे। बुमराह मारने की मैं आउट हो गया कि ऐसे ही आउट हो गया? मारते रिव्यू तो नहीं लिया, लगता है आउट हो गया। क्रॉस बैट स्लॉग खेलते हुए। क्यों कीड़ा कर रहा है वो? अभी तो इस टाइम पे रिव्यू ले ही सकते हो, अभी कुछ है नहीं, नथिंग टू डू। गावस्कर उस दिन एक चीज बोल रहा था कि ये टीम का और एक प्रॉब्लम है, वही है कि ये लोग मार के ही खेल सकते हैं। ये लोग कोहली इज द ओनली वन टीम में हु कैन एक्चुअली एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ रोटेट करके खेलता है। बाकी सब इफ इट इज देयर डे दे विल प्ले, दे विल विन यू, बट इफ इट्स नॉर्मल डे पे दे विल नॉट बी एबल टू मैन्यूवर दिस। अभी देखना, अभी मतलब यू नीड सेंस, राइट? नहीं, धवन अच्छा खेल रहा था यार। धवन को तो बिठाना नहीं चाहिए। धवन तो बढ़िया। धवन का भी वही हुआ कि उसका भी बेचारे का 200 मिस हो गया बेसिकली। वो तो एकदम मिस हो गया, क्या मिस हो गया, उसी में तो डिफरेंस है। वो मस्त और आराम से खेल रहा था। हाँ, उस टाइम पर कैसे खेल दिया उसने पता नहीं। बट वो एकदम कंफर्टेबल था, आई थिंक। बाकी तो बंद का वो एकदम फ्लुएंटली खेल रहा था बंदा। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो इवन कोहली वाज वेरी फ्लुएंट। हाँ, बट वेरी फ्लुएंट। अलग लीग है ना कोहली और बेचारा धवन का करियर खत्म होने है। कोहली का करियर कहाँ खत्म हुआ है, तो पर डिफरेंट इंडिया का भी प्रॉब्लम है टीम। अभी कैन यू हियर अस नाउ? अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कैमरा अभी सुनाई दे रहा है। सुनो नया कैमरा देख मेरा, पता लग रहा है डिफरेंस? हाँ थोड़ा पिक, बट थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा मतलब वो एक कोई मोड है क्या, कोई मतलब? हाँ, वही filter सब लोग होगा वही बोल रहे हैं। आई हैव टू फिगर दैट आउट कि वो मोड, ये कोई ब्यूटी मोड है या कुछ है चल रहा है उसपे। ऐसा लग रहा है मैं मेकअप करके बैठा हुआ हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो वियर्ड लग रहा है। येलो लाइट है पता नहीं कहाँ से। सो आई हैव टू फिगर दैट आउट, हाउ डू आई चेंज दैट? मेरा भी एक्सटर्नल वेबकैम ही है। अभिषेक भाई नॉट आउट है, बुमराह नॉट आउट है। नॉट आउट है? हाँ, वो रिव्यू लिया उसने। सही लिया। मैं वही बोल रहा था, अभी ना रिव्यू लेने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। वेरी गुड। अभी देखो। अभिषेक मुझे नहीं दिख रहा तेरा कैमरा अब। अरे भाई कैमरा के लिए अलग से हम सेशन रखेंगे। अभिषेक तो अच्छा दिख रहा है। अभिषेक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, कैमरा हाँ मतलब ऐसा कुछ वियर्ड, उतना वियर्ड नहीं है मतलब। बट बाद में फिगर आउट कर लेना। हाँ ठीक है। तो सोमू ने शर्मा के अपना कैमरा बंद कर दिया है तुझे देख के। नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ। नहीं, सोमू मेकअप कर रहा है अभी। ब्यूटी आनी चाहिए। सोमू मेकअप कर रहा है। मुझे ब्यूटीफाइड अभिषेक दिख रहा है, लेकिन मुझे उसका कैमरा नहीं दिख रहा है। कैमरा से तुम अभिषेक को देख रहा हूँ। अभी ऑल ऑफ अ सडन सोमू अभी देखेगा 5 मिनट कैमरा ऑफ करेगा और वो शेव करके आ गया सोमू। बिल्कुल। सोमू के, हमारा चैनल में सोमू के फैंस ज्यादा है, फॉलोइंग ज्यादा है। सोमू आपकी वजह से ही हमारा चैनल चल रहा है। कुछ भी या सोमू आप ही हो, तुम ही हो। और बताओ कैसा है उधर वेदर? अभी तुम्हारे उधर कैसा है? इधर तो ठंड है। बाप रे, यूटा में इस टाइम पे और क्या होता है वेदर? हाँ, उधर तो काफी, इससे मतलब मैं वो सुन के ही थोड़ा मुझे सहारा मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वीक ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ठंड में जाने को अच्छा नहीं लगता। बट तू अभी क्या, तू फिजिकली जा रहा है ऑफिस? हाँ, मुझे बस रोज एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक्टिव स्क्रीनिंग फॉर्म, कि मुझे बुखार नहीं आया लास्ट इतने दिनों में, और मुझे हेडेक्स नहीं हुए और नौशिया नहीं हुआ, और मैंने सारे वैक्सीन लिए हुए। और अगर वैक्सीन नहीं लिए है मैंने,
क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, वैक्सीन क्यों लेने हैं। तो फिर मुझे वो हर बार जाते वक्त नेगेटिव टेस्ट दिखाना है करके उनको। और फिर नो जोक डिस्क्लोजर ना, नो जोक डिस्क्लोजर की मतलब नहीं भैया जोक नहीं मारूंगा मैं ऑफिस में। ऐसा तो नहीं करा रहे, ये तो अच्छा करा रहे, कराना चाहिए, मैं तो नहीं करा रहे। अरे कराना, वो स्टार्ट करने से पहले जोक सारे कर लेने पड़ेंगे मतलब। गेट इट आउट घुसने से पहले है ना, घुसने गेट से इट पहले आउट। सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ो, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ो, उसको सारे जोक सुना दो। हाँ बिल्कुल, वो मुझे देख के ही भागे था कि नागर टाइम से। वाओ, आई थिंक बट इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंचुरी हो गया, हाफ सेंचुरी विराट मार दिया कोहली भाई बहुत ही इसने रिलक्टेंट प्लेयर है, बहुत ही रिलक्टेंट प्लेयर बन रहा है। मतलब ही मतलब बहुत ही रिलक्टेंटली कैप्टनसी छोड़ी है और अब नाउ ही जस्ट नॉट वही फीलिंग मैं इट। बोल रहा वो हूँ, जो मुझे पूरा टीम का जो ग्रुप हडल टैलेंट, में कोई और बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर हाँ, रहा, और वो फील्ड, और तो फील्ड में बहुत दिख खटक भी रहा नहीं है। रहा है, वही फील्ड मैं में तो फील्ड दिख में भी नहीं देख रहा रहा है हूँ वो। वैसे, लाइक जब इवन नहीं क्लैप बैटिंग, करते मैं उसको वो अभी भी बाकी लोगों से बेटर बैटिंग कर रहा है। नहीं नहीं, बैटिंग नहीं बोल रहा बैटिंग मैं बाकी लोगों बोल से रहा बेटर हूँ, ही कर रहा है, मैं नहीं वही वो बोल रहा जब हूँ। हाई फाई कर रहे हैं ना, बट जब वो विकेट जो जा रहा है, एनर्जी जीरो है पूरी। नहीं जब हाई फाई भी कर रहे हैं ना एक दूसरे को, जब विकेट जाता है तब देखा नहीं तो। आई गेट इट कि वो वोकल क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली राहुल कैप्टन है, अगर वो इनिशियल मैचेस में वोकल होगा ना तो अंडरवेल्म, शायद उसका हाँ। अथॉरिटी डिमिनिश हो हाँ बट जाएगा ना राहुल राहुल का। के चेहरे पे नहीं, ऐसा बट दैट आई लग अंडरस्टैंड। देखो, राहुल का एनर्जी इज वेरी लो, ही हैज टू पंप राहुल के अप हिज चेहरे पे एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी धोनी का भी लो था, बट उसका एक मुहर्रम पता है। नहीं एक ऑरा था एक। नहीं नहीं प्रिंस, मुझे लगता है इतना भी लो नहीं था राहुल, तो ऐसा लगता है कि वो मतलब मैच जब शुरू हो रहा है ऐसे लग रहा है वो ऑलरेडी हार गया है। बट राहुल ऐसे ही है, पंजाब के लिए भी ऐसे ही कैप्टन करता है, नहीं नहीं, लगता है कैप्टन है ही नहीं। हाँ नहीं, बट मैं वही बोल रहा हूँ वही उसका, बोल रहा था उसको ये आई एम कैप्टनसी। नॉट सेइंग ही हैज टू बिकम कोहली, बट उसका एग्रेशन में, बट ही हैज टू एटलीस्ट ब्रिंग अप हिज एनर्जी, बिकॉज एनर्जी बहुत लो है। मतलब उससे ज्यादा वोकल तो पंजाब में मयंक अग्रवाल है। आई फील ही इज मोर एक्टिव देन हाँ राहुल। वही बोल, हिज एनर्जी इज वेरी लो। बट बुमराह इज नॉट बैड, बुमराह का वही है, बस उसको कितना इंजर करेंगे ये लोग, ऐसे सब मैचेस खिला के पता नहीं। बट नहीं धोनी कभी डिस्ट्रॉट लगता नहीं था, राहुल डिस्ट्रॉट लगता था, लेकिन नहीं हार ही गया हूं मैं, नहीं पहले नहीं, से हार गया हूं। exactly, and he looks distraught from the first over of the game, which is the funniest part, ना, so you cannot do that. बहुत ही दुखी लगता है। जब आज वो आउट हुआ, फर्स्ट विकेट जब गिरा हमारा, when he was going back, ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी के तुम मॉर्निंग सेरेमनी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। मैंने आज तक में एक वो देखा, शो देखा, उसमें गावस्कर आता है मतलब एज अ स्पेशलिस्ट स्पीकर, तो उसमें बहुत लोग ये बोलते हैं एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद इट, हम लोग ना अभी हमारा स्टाइल ऑफ क्रिकेट आउटडेटेड हो गया है। हम लोग ना T20 को T20 की तरह खेलते हैं ना वनडे को वनडे की तरह खेलते हैं। ओवर्स में, हाँ, अभी हमारे सारे मीन्स बहुत आउटडेटेड हैं। हम वनडे को भी ऐसे खेलते हैं कि टॉप 3 पहले आराम से खेलेंगे और फिर लास्ट में हम कॉम्पनसेट करेंगे। ऐसा आजकल ऐसा चलता ही नहीं है। नहीं प्रिंस, अगर आई एग्री वो चलता नहीं है, बट अगर वो चले भी, प्रॉब्लम है इंडिया का, तो इंडिया डजंट हैव अ मिडिल ऑर्डर। तो ये लोग अगर स्लो खेलेंगे तो फिर एंड में तो ना मारने के लिए कोई है ना टिकने के लिए कोई है। सो इंडिया का चांस मुझे लगता है थोड़ा, स्पेशली फ्लैट विकेट्स में तो इंडिया का चांस अभी नहीं है। इंडिया को शायद अभी एक मेम चल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंडियन क्रिकेट टीम आर लाइक अ डोनट, अ होल इन द मिडिल। That's a good one. Because हम लोगों ने एक्चुअली, तूने मिस किया, हम लोगों ने बिगिनिंग में, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड कि इंडिया, ओह व्हाट अ कैच, आउट, चेहर आउट हो गया। अरे यार, और बाय द वे आई थिंक शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और अश्विन को प्रमोट कर देना चाहिए। मिडिल ऑर्डर तो कुछ काम का ही नहीं है। मेरे को तो ज्यादा कॉन्फिडेंस उस पे है, शार्दुल ठाकुर और ये लोअर विराट कोहली लोअर ऑर्डर पे बोल रहा था टेस्ट मैच में। खुश हो रहा है ज्वालिन शार्दुल ठाकुर का सुन के। विराट कोहली लोअर ऑर्डर के बारे में बात कर रहा था। मुझे शर्म आनी चाहिए, मतलब टेस्ट मैचेस में। ओह नो, यस वी अग्री, लोअर ऑर्डर हैज नॉट परफॉर्म्ड। मतलब तुम्हारा मेन बैट्समैन कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका कोई बात नहीं कर रहा उतना ज्यादा। नहीं, yes, they have a responsibility. They should score the 40 runs. Shardul Thakur should play as a batting all-rounder. Shardul Thakur can easily play as a batting all-rounder. Even I think he can play test matches. मैन ऑफ द मैच पक्का था अगर रुकता। अरे यार, अरे घुस जाएंगे, हारने के चांस बढ़ गए। चहर नहीं आउट, हार जाए, हाँ, चहर नहीं आउट होना चाहिए था। But शार्दुल ठाकुर सीरियसली बैटिंग, उसको ध्यान देना चाहिए, उसको बैटिंग।
बिकॉज उसका बॉलिंग ऑसम नहीं है, बट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही वुड बी ऑसम। हाँ डेफिनेटली, मतलब एंड बॉलिंग में उसका वो भी इस बार इस सीरीज में नहीं चला, बट उसका जो भी है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बॉलिंग, बट ही इज अ विकेट टेकर, वो किसी तरह से ले लेता है विकेट। 8 विकेट लिया एक इनिंग्स में, तो Test मतलब में, हाँ, है, वही मतलब ही कैन टेक दैट आउट ऑफ हिज आर्मरी ना। हमको हर एक मैच में 8 विकेट नहीं चाहिए, राइट? हाँ बट प्रॉब्लम वही, मुझे जो रिस्क लगता है जो इरफान पठान के साथ वो ना हो जाए कि साला इरफान, उसका मतलब बॉलिंग हाँ, प्रॉब्लम, वो वो सब बैटिंग कुछ ही बनने का सब कोशिश कुछ ही करेगा, उसका बॉलिंग एकदम ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ ही डामाडोल। बट And problem जडेजा ये को वो- कितना मिस कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो? किसको? हर एक फॉर्म में जडेजा को मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली। नहीं यार, मुझे सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी इज दिस इंडियन टीम in all the 3 games outbowled by the South African spinners, which is weird. And मैंने बोला ना, मुझे सबसे गुस्सा आता है कि एडन मार्करम आज को छोड़ के बाकी सब गेम्स में 8-8 10-10 ओवर बॉलिंग किया है उसने, and at less than 5 runs an over. क्रेजी था वो। हाँ, स्पिन अश्विन, पता नहीं अश्विन पे मुझे ना, मतलब अश्विन मतलब अजीब है। मतलब आई वाज नॉट इन फॉर अश्विन, देन एक साल में ही कन्विंस्ड मी कि ही इज द बेस्ट स्पिनर। अब मुझे वो वापस अनकन्विंस कर रहा है कि नहीं मैं तो अच्छा स्पिनर नहीं हूँ अब्रॉड में। मतलब बट टेस्ट मैच की बात कर रहा है कि वनडे की बात कर रहा है? No, टेस्ट की बात कर रहा है, वनडे की नहीं, बात कर रहा टेस्ट है? मैचेस की बात कर रहा हूँ। आई वाज कन्विंस्ड कि अभी अश्विन ऐसा स्पिनर है कि पिच डजंट मैटर, ही विल ऑलवेज बोल वेल। बट नहीं, मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग बॉलिंग की उसने इसमें, तो फिंगर नो स्पिनर का पेनिट्रेशन है एट वही ऑल। प्रॉब्लम है। Actually चहल, Finger. इवन मैं तो सेकंड गेम में देख रहा था, चहल was bowling much better than अश्विन। स्मार्टर, हाँ। और अश्विन इज नोन फॉर हिज स्मार्टनेस, बट मुझे तो वैसे भी अश्विन लॉन्गर फॉर्मेट में बेटर लगता है हाँ देन द शॉर्टर फॉर्मेट। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री। सो रिस्ट स्पिनर चाहिए, एंड मतलब शम्सी और महाराज को तो रीड भी नहीं कर पा रहे थे ये लोग, कोई शम्सी को तो बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए ये लोग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बट वो तो कॉम्प्लेक्स बॉलर है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा बॉलर है, तो विच इज आई फाइन। एग्री, आई मीन यू नो वो रिस्ट स्पिनर है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा मिलता नहीं है, बट ये लोग ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में सच स्ट्रगल करते हैं यार। आई मीन दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट इज ट्रू। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने सुना उसमें, उसी कॉन्वर्सेशन में, स्पोर्ट्स तक बोल के कुछ है, आता है उस पे। हाँ वो विक्रांत वाला बता रहे थे कि हाँ, उस पे दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आई थिंक दिनेश कार्तिक को कमेंटेटर ही बन जाना चाहिए, बट अच्छा वो बन ही गया, तो वो तो रिटायर हो गया है। तो उसने बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जितना अच्छा स्पिनर है ना, मतलब जैसे फॉर्मेट छोटा हो रहा है वैसा तुम्हें लेस स्किल चाहिए एज अ स्पिनर, बिकॉज वनडे में क्या हो रहा है ना, पीपल आर वेटिंग फॉर द बैट बॉल एंड यू जस्ट नीड 6 to 7 पर ओवर, राइट, इन एन ओवर। T20 में क्या है, फॉर एवरी बॉलर इफ ही इज गिविंग अवे 6 to 7 पर ओवर, ही इज बॉलिंग वेल, राइट। 4 overs 28 is very good, right? But spinners के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं T20 में, they try to attack. So the person who has a little bit of variety na is getting wickets. One day पे you need a more skillful bowler, because what they are doing is they'll wait for 3-4 balls, then they wait for the boundary ball, they'll hit you. तो मतलब you need a better spinner, मतलब you need someone with more control in ODIs actually. So wrist spinners are more effective in T20 and finger spinners will be more effective in one days. Ideally. मुझे I have never been a big fan of finger spinners anyway. Wrist spinner always, but it has to be a good wrist spinner. ऐसा नहीं कि साला कोई भी wrist spinner आ जाए जिसका कंट्रोल नहीं है, because प्रॉब्लम है फिंगर स्पिनर का वैरायटी कम होता है ना। फिंगर स्पिनर क्या करेगा? टेस्ट मैच में चलेगा, कंट्रोल नहीं है, फिफ्थ बॉलर है, चलता है, मतलब दैट्स फाइन। अब्रॉड अफ्रीका में तो चलेगा यार, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बट अश्विन हमारा डिफेंसिव ऑप्शन था इस टाइम साउथ अफ्रीका में। आई अंडरस्टैंड दैट कि पिच को हेल्प नहीं है, आई गेट इट, बट ही शुड स्टिल बॉल लिटिल बेटर यार। थोड़ा पेनिट्रेशन, मतलब कुछ, मतलब बैट्समैन हैड नो इशू। वो इतना स्लो बॉल कर रहा है अश्विन नेवर यूज्ड टू बॉल दिस स्लो। पता नहीं क्या हो गया, सब लोग बैकफुट में जाके आराम से क्रीम कर रहे हैं उसको। करेक्ट। और हमने, आई एम श्योर अफ्रीका के बैट्समैन को अंडर एस्टिमेट कर दिए। वो लोग के बैटिंग अच्छा थे, बैट्समैन अच्छे थे अफ्रीका के। वैंडरसन तो या तो वो एक है, हम उन लोगों ने हल्के में ले लिया वो लोग के बैट्समैन को, वो भी है, वो लोग के बैट्समैन भी अच्छा है। नहीं इवन वो जो पीटर, आई डोंट थिंक बॉलिंग बहुत खराब किया यार। जीत जाए बस अभी। कीगन पीटरसन, वो तो क्या सही क्या प्लेयर है यार वो बंदा।
मतलब वो सही बंदा है। मतलब तुम हमारे तो बेस्ट के बेस्ट प्लेयर पुजारा और रहाणे खेल नहीं रहे, वो लोग का डेब्यूटेंट खेल के गया अपने अगेंस्ट, तो उसमें नहीं कुछ बट तो बेस्ट टैलेंट है का भाई। बेस्ट तो खैर वो तो हम लोग उनको बेस्ट बना रहे हैं, वो तो लास्ट काफी साल से बेस्ट प्लेयर नहीं है भाई वो। कोहली भी कहाँ बट खेला, कोहली कीगन आई पीटरसन ने एग्री, ज्यादा रन नहीं बनाए। खेला कोहली, आई एग्री, कोहली नहीं बट खेला। वही है ना, बट उनका देखो, उनका जो पीक था पुजारा का, तब भी थोड़ा पीक था। रहाणे का कोई पीक नहीं था। रहाणे वाज नेवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब विराट अदर कोहली देन को वो आई लॉन्गर थिंक रोप दे सकते हो, क्योंकि वो वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 2015 वाज द ओनली ईयर जहां पे मुझे लगता है उसका वो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज था वेयर ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट, उस सीरीज में। अदर देन दैट पुजारा का भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेस था, विराट कोहली का और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेस था, राइट? तो ये उसको साला लॉन्गर रोप मैच दे रहे हार हैं, आई गए। डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। खत्म। मुझे उसको लॉन्गर रोप दे रहे हैं, मुझे दिक्कत ये नहीं हो रही और एक उसमें। विकेट गया, बुमराह आउट दीपक हो चार गया। 54 ऑफ 34, मतलब शर्म आनी चाहिए मिडिल ऑर्डर को। अरे पहुंच गए हम तो ऑलमोस्ट 280, गए तो 19 और हो गया। क्लोज थे ऑलरेडी पहुंच, लेकिन अभी क्या। पंत जो है, मतलब वही पंत के लिए तो एक तो नंबर 4 इज नॉट हिज बैटिंग पोजीशन। मेरे को I know he played an extraordinary innings. उसने दो possibly he played the two best innings of this series, right? In my mind, टेस्ट में भी देखो, वनडे में भी देखो, टू बेस्ट। बट उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, वही है रिलाय वो नहीं तो। कर सकते। नंबर 4 में इंडिया नीड्स somebody जो मिल्क कर सके बॉलिंग को, एंड करेक्ट वनडे में तो करेक्ट। चाहिए, मुझे T20 में नहीं चाहिए तो वनडे में चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये सब में ऋतुराज एकदम बेस्ट है, मतलब जो हिसाब से खेल रहा है भाई ना, बहुत 4 में बढ़िया थोड़ी है। खेलेगा ऋतुराज, क्या कहाँ फिट अरे करेगा? उस कहीं पे भी कर दो, वो सही प्लेयर लग रहा है मेरे को तो। मुझे ऐसा लग रहा है बेटर देन अय्यर। मतलब वो देखा तो वो चेन्नई में वो आराम से एक एक रन निकालता है, मतलब वो रन भी निकाल सकते हैं एक एक रन, तुमको हिटर नहीं चाहिए। हाँ नहीं, पर उसको सिक्स फिर मारना। उसको मेरे हिसाब से यू कैन नॉट प्ले हिम, अगर 4 पे खिलाना है तो यू कैन नॉट प्ले हिम डायरेक्टली तो इंटरनेशनल। धवन तो वैसे भी जाने वाला है, धवन की जगह पे उसको लेना चाहिए एज धवन अ तो ओपनर। बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। धवन तो अभी नहीं, बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। जब जब भी जाएगा। जाएगा तब की धवन बात कर रहा हूँ। धवन वनडे में विराट कोहली के बाद आई फील ही इज द बेस्ट बैट्समैन। वो हमेशा परफॉर्म करता है वनडे में। हाँ वो तो करता है, मानना पड़ेगा उसको, वो नहीं तो बट धवन को कंसिस्टेंट है बंदा। अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा, शर्मा आएगा तो चला जाएगा ना वो। हाँ वही सैड है वो। नहीं बट शर्मा आई थिंक राहुल को वन डाउन खिला दो। राहुल को वन डाउन खिला, या राहुल को टिल डाउन खिला दो। कोहली को कहाँ खिलाओगे भाई? बहुमा ही ले रहा है क्या ऐसे लग रहा है मुझे देख के। ओनली बहुमा इज टेकिंग कैचेस टुडे, ऐसे लग रहा है। नहीं, शर्मा जो है तुम्हारा, शर्मा तो आएगा, ओपन वो करेगा। एंड हाँ मतलब अभी बहुत इट्स अ बैड सिचुएशन इन द सेंस, अभी प्रॉब्लम इंडिया का टॉप में नहीं है। इंडिया हैज टू फाइंड पीपल हु कैन बैट इन द मिडिल एंड हु कैन बैट वेल। जो अभी मुझे लग रहा है कि इंडिया का बहुत बड़ा कोलैप्स होने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट सेटअप, बिकॉज विराट कोहली हैज स्टेप डाउन, राइट? रोहित शर्मा साला इंजर्ड, मतलब इंजर्ड एवरी 2 महीने में इंजर्ड हो जाता है, तो उसको तो कैप्टन बना ही नहीं सकते टेस्ट मैचेस में। नहीं, ही वनडे में वांट्स टू तब भी बी, चल जाएगा। वो आईपीएल के लिए फिट होने के लिए वो इंजर्ड हो जाता है, वो ही जो प्लेज भी फॉर जो भी कर रहा है, मेरे हिसाब से तो लॉन्गर फॉर्मेट में उसको बनाना ही नहीं चाहिए। वो साला फिट ही नहीं रहता, बार वो तो बार है। स्टॉप गैप थोड़ी कैप्टन। टेस्ट मैचेस में यू कांट हैव अ स्टॉप गैप कैप्टन ऑल द टाइम। वनडे में चल जाएगा। करेक्ट। हाँ बट कौन होगा फिर टेस्ट मैच में अभी कैप्टन? और कोई तो है नहीं, कोई नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। कोई है ही नहीं। राहुल को ही करना पड़ेगा, या आई मीन इफ दे वांट टू गो लेफ्ट अश्विन तो नहीं। अश्विन अश्विन का प्रॉब्लम वही है कि वही उसका दे हैव टू लुक, वो तो और भी ज्यादा बुढ़ा है ना, रोहित से भी बुढ़ा है वो। अरे 1.5 साल तो रह ही कुंबले की सकता तरह है। होगा, कुंबले की तरह, इट विल बी अ स्टॉप गैप थिंग। और Correct. कैप्टन तो अगर- ऐसा होता है ना, अगर यूजुअली in तो हर terms मैच of- में खेले। अगर किसी मैच में अश्विन को बिठा दे तो हाँ एग्जैक्टली। नहीं यार, लेफ्ट फील्ड करना है तो पंत को बना दो एंड गिव हिम अ लॉन्ग रन। आई मीन दैट इज द ओनली अदर ऑप्शन। आई थिंक सबसे लेफ्ट फील्ड होगा द ओनली प्लेयर who's a permanent fixture other than बुमराह। विराट कोहली एंड बुमराह, जडेजा इज द परमानेंट फिक्सचर। बट जडेजा ने कोई भी फॉर्म में कैप्टनसी नहीं की। जडेजा को तो सीएसके का कैप्टन इस बार बनाएंगे, वो सीएसके का कैप्टन होने वाला है ना इस बार। अच्छा, धोनी ने छोड़ दिया था ना कैप्टनसी? आई थिंक सो। उसको हाँ, तो but he's still going to be in the team. वो बोला मैं जितने साल आईपीएल खेलूंगा सीएसके के लिए बट खेलूंगा। पंत इज अ गुड ऑप्शन। पंत को मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि उसका बैटिंग और इफेक्ट हो जाए कैप्टनसी के बाद, मतलब वैसे नहीं, ही वो उसका तो- इतना इनकंसिस्टेंसी। नहीं दिल्ली में अच्छा खेला, दिल्ली एज ए कैप्टन तो अच्छा खेल रहा था वो। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। शॉर्टर फॉर्मेट इज डिफरेंट यार। आई ऑलवेज शॉर्टर फॉर्मेट बहुत अलग है। हाँ, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा कैप्टन हूँ। वही कैप्टनसी ना टेस्ट मैच में मेरे हिसाब से सबसे हार्ड है भाई, वेरी हार्ड।
यार इनमें से 4 घंटे में एक मैच खत्म हो जाता है, यहाँ पे 90 ओवर 5 दिन। हाँ, और पूरे बहुत डिफरेंस है, बहुत and डिफरेंस है। टेस्ट मैच में तो वो मतलब टेस्ट मैच में अग्रेसिव मेंटालिटी रखना एंड यू नो बैलेंस बिटवीन अग्रेशन एंड डिफेंस, टेस्ट मैच में कैप्टेंसी इज मच हार्डर। T20 उसमें आई एम नॉट सेइंग T20 में रिलेटिवली इजियर है एंड यार ये बहुत टेंस हो गया है सिचुएशन, सॉरी। 5 for 5 एक चहल लास्ट टू बैटिंग, ओ ये क्या आउट हो गया, ऑल आउट हो गया। थैंक्स। प्रॉब्लम है पंत का, प्रॉब्लम है कि उसका क्या होगा कि 2-3 इनिंग्स खेलेगा नहीं, उस पर पिछड़ आ जाएगा फिर से, कि वो एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा। कीपिंग अच्छा करता है, उतना भी अच्छा नहीं करता ना, ही इज नॉट एन आउटस्टैंडिंग कीपर। पर अभी उसका कीपिंग मतलब बहुत इंप्रूव हो गया, बहुत इंप्रूव हो गया अभी तो। मैं अभी भी जब देखता हूँ उसके कैचेस, रिद्धिमान शाह के कुछ कैचेस, मतलब रिद्धिमान शाह इज अ बेटर कीपर। ही इज अ बेटर बेस्ट है वो। रिद्धिमान शाह लेटली तो उसने कुछ बहुत क्रिटिकल कैचेस छोड़ दिए, प्लस उसका इंजरी, वो भी तो वो फिट ही रह नहीं पा रहा भाई। ही इज ओल्ड ना, उसको यू कांट ब्लेम हिम, उसका तो उम्र है ना काफी, 37 38। हाँ, अभी तो उम्र हो गया है, और फॉर बिकॉज़ वो तो धोनी के साथ आया था ना। करेक्ट, ही केम विद धोनी। फॉर अ कीपर दैट्स यू नो दैट्स quite old, because keeping is a very hard, tough. No, but he's generally fit, but the problem is कि he's not injury free. बहुत ज़्यादा इंजरी होता है उसको। चलो guys, we have to talk about the elephant in the room. ये तो मैच हमने सीरीज का बात कर दिया, but what is happening in Indian cricket? I mean that has been a huge fiasco. वो तो उसको शो कॉज नोटिस देने वाला था गांगुली विराट कोहली को। I again let's talk about that. So Avik, what is देना चाहिए 10 साल को। It is sad that हमारा सबसे strong powerful board इतना डिसरे में है। मतलब सारे बोर्ड्स ना इंडियन बोर्ड की तरफ देखते हैं, and if this is the case, if there's so much of disharmony between the president of the organization and the captain, this is so sad. Even, and I think it's in bad taste because I feel, मतलब personally मुझे लगता है कि गांगुली ऐसा स्टेटमेंट करेगा ही नहीं कि हमने we reached out to him, and then विराट कोहली उसको वो कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब ये बहुत ही वियर्ड सिनेरियो है, बिकॉज जनरली पब्लिकली ये सब कुछ बातें होती ही नहीं है। अब जब ऐसे कर दिया उसने, तो मतलब there has to be a clarification from one of the sides, right? Either BCCI says something or Virat Kohli says something. कुछ तो करना ही पड़ेगा। But I'll tell you, I am a huge fan of Ganguly, right? But in my mind, गांगुली को एक तो वो स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था पब्लिकली, ठीक है, जो उसने किया, जिसके and I'll come to Kohli as well. He should not have made that statement. If he made that statement, then after Kohli ने press conference किया, Ganguly should have come and clarified. I think Ganguly का एक mistake था, उसको बोला उसके बाद कि what Kohli said this, आपको तो पूरा contradict किया। उसने बोला oh no, we will take it up, board will take care of that. That was wrong on his part, and maybe again, I'm not saying maybe Ganguly and Chetan Sharma, I think possibly played the smartest out of all. I don't know तुम लोगों ने चेतन शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि नहीं। चेतन शर्मा ने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया, he didn't duck any question, and उसने कैटेगोरिकली सब कुछ बोला। उसको ये चीज बोला, गांगुली ये बोल रहा है, कोहली बोल रहा है, किसी ने बात नहीं किया। चेतन शर्मा could have said, this is, okay, I don't want to talk about it, जो बोलना था बोल दिया। He could have easily, avoided that question. He took it head on. He took names. उसने बोला BCCI president, me, चीफ सिलेक्टर के ये 2 सिलेक्टर्स ने क्लियर कट कोहली को बोला था कि you should not announce, if you are leaving the captaincy, don't announce it before the World Cup because it will put the team in disarray, and Kohli did not listen to us. और हमने उसको बोला था छोड़ेंगे, we'll talk later. सबसे प्रॉब्लमैटिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील एज एन ऑर्गेनाइजेशन से, अगर मेरी कंपनी का सीईओ है और वो मुझे हटाना चाहता है या मुझे रिलीव करना चाहता है, ही ओज मी नो एक्सप्लेनेशन। उसकी कंपनी है ये एक्सप्लेनेशन कि मैंने 10 साल सर्व किया है, आई गेट इट, कर्टसी होता है। अगर तुम्हें इंटिमेट भी किया है, इट्स अ कर्टसी कॉल, नो वन होल्ड्स एनीथिंग अगेंस्ट।
यू आर राइट, I don't agree with this setup at all. ये उन्होंने डिसाइड किया इंडियन टीम के लिए, विराट कोहली टीम के लिए डिसाइड नहीं किया है, ठीक है? करेक्ट। एंड नहीं, गावस्कर का एक पॉइंट था, दे वर सेइंग कि कोहली को लास्ट मोमेंट में बताया, बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, 90 मिनट्स पहले बताया ना। वो गावस्कर ने बोला हमारे टाइम में, काफी टाइम में हमको वो मीटिंग में आके पता लगता था कि हम लोग, आई एम बीइंग रिमूव्ड। सो इसमें देयर इज, गावस्कर ने बोला, हाँ एग्जैक्टली, गावस्कर ने बोला कि बताया, मतलब बता दिया, ये बहुत, दैट्स अ वेरी गुड कर्टसी कॉल। हाँ, मतलब 90 कर्टसी मिनट कॉल दे पहले दिया बताया। उसने। एंड वही है, एंड ये दिस काइंड ऑफ बैकफायर्ड, एंड यू नो, एंड क्या हुआ, इफ यू रियली लुक एट इट, करंट प्लेयर विल ऑलवेज गेट मोर सपोर्ट देन एन एक्स प्लेयर, राइट? गांगुली को तो तब गाली पड़ा जब कोहली का स्टेटमेंट आया, एंड अभी क्या हुआ, उसने कैप्टेंसी छोड़ दिया फॉर वॉट एवर रीजन, एंड नाउ पीपल आर सेइंग ये तो गांगुली ने बोला था कि बोर्ड विल टेक केयर ऑफ इट। अभी गांगुली को फिर गाली पड़ रहा है, एंड वो शोकेस नोटिस का बोला क्यों, एंड ये गांगुली वाज वेरी स्टूपिड। लीक हुआ है तो लीक हुआ है तो, हाँ, बाकी लोगों का तो बात लीक हुआ सुन है। के अगर उसने भेजा नहीं, क्योंकि उसका रेपुटेशन तो साली हो गया, ही शुड हैव सेंड द शो कॉज नोटिस। अगर नहीं, बट ये तो लीक है, मतलब क्या पता ये था ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट मेरा प्रॉब्लम है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो तुम हर एक प्लेयर पे कमेंट कर ही क्यों रहे हो? एग्जैक्टली, सिलेक्शन पे तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। करेक्ट, एंड दैट इज, एंड यू नो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, उसको वो जो कमेंट वो करना नहीं चाहिए था। अगर उसने किया, देन ही शुड हैव गिवन अ क्लैरिफिकेशन आफ्टर दैट। उसने क्या किया, एक कमेंट करके छोड़ दिया, क्लैरिफिकेशन नहीं किया, एंड पूरा वो हो गया। एंड विराट कोहली का भी फॉल्ट था, विराट कोहली ने भी, ही शुड नॉट हैव डन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोथ आर प्रॉब्लम है, दोनों का नेचर सेम है ना, दे डोंट बैक डाउन। बट गांगुली का मैंने कभी नहीं सुना दालमिया आके लिख रहा है, ओ अजहर को कैप्टन बनाना चाहिए। अरे यू आर द प्रेसिडेंट, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। सिलेक्शन कमिटी है ना, क्यों कमेंट कर रहे हो? उसको कमेंट नहीं करना चाहिए था, किया तो ही शुड हैव बैक्ड इट अप, एंड ही शुड हैव क्लैरिफाइड, जो उसने नहीं किया। एंड कोहली भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला सब कुछ, एंड नाउ और जिसको मीडिया अट्रैक्शन नहीं चाहिए ना, धोनी को देखो, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ धोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आई स्टेप डाउन एज कैप्टन, थैंक यू, बस ही वॉक्स आउट। वो बैठ के वहां पे क्लैरिफाई नहीं कर रहा होता है, because he actually does not want any traction. Virat Kohli wants traction because he feels कि he's been hard done, and that is his personal thing. ठीक है, I don't have a problem with that. Hard done तो यार काफी captains were hard done, right? Nobody made this kind of a press conference and पूरा नहीं, मेरे को कुछ बोला नहीं, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला. If you see इन सब ये बड़े-बड़े प्लेयर्स, सचिन को छोड़ के, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, इन सब तुम रिटायर कर रहे हो, रिटायरमेंट को लेके इट वाज अ ह्यूज इशू. नोबडी मेड अ पब्लिक कमेंट. अभी तक 13 साल बाद भी किसी ने कमेंट नहीं किया है. कैप्टनसी छोड़ दो, उनका तो करियर खत्म हो गया, एंड नोबडी मेड अ कमेंट. सो इसलिए you have to take that, you know, in the chin and move on. I mean, there are much bigger players. Gavaskar was removed from captaincy. Uska he took it as a man. He never came in the public. So this I think itself was wrong. But Sourav Ganguly should not have made that comment on selection. He should not get involved in any of these things. And one-to-one conversation होना ही नहीं चाहिए. And behind the scene हो रहा है तुम्हारा जो भी involvement है, तुम्हें you don't have to come to the media and announce it. And अगर सोचो ऐसे अगर बोला भी, sorry बोलो, sorry. No, one thing I'll agree with is what Abhishek said, that it was totally inappropriate to make a comment from Sourav Ganguly's part. But I also really agree with the point that Avik made, that obviously Virat Kohli is like hurt in some major way, in some ego part or something. Something went down there. He reacted and he called a press conference, but I think he reacted to something that some major strings got pulled there when this was done. So obviously he reacted. It was like a knee-jerk reaction, I feel, from his part. All his decisions were preemptive. He preempted कि अगले सीरीज में उसको फिर बोलेंगे कि I think you should step down. Please announce it or we'll announce it. उसके पहले ही he stepped down. T20 वर्ल्ड कप में भी यही किया, और उसको चाहिए था एक लास्ट हुर्रे चाहिए था. तो अगर वो डिक्लेयर नहीं करता ना कि मैं T20 कैप्टन से वो, तो अगर मतलब he had preempted कि मुझे हटा रहे हैं, मैं पहले से डिक्लेयर करता हूं, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, and they'll be all proved wrong. Right? Exactly. कुछ हुआ नहीं. And उसका वही हुआ. कोहली के लिए भी it turned out to be bad because जब ऐसा सिचुएशन है, दोनों सीरीज में इंडिया फ्लॉप ना, मतलब T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गया, टेस्ट सीरीज यहाँ हार गया. फॉर्म भी कम हो गया ना उसका भी. कोहली खुद तो कितना
वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन तो है, बट उसका भी फॉर्म नहीं था बिल्कुल ये सब टाइम में। उसका फॉर्म गए हुए तो भी काफी टाइम हो गया। हाँ। 70 सेंचुरी पे कब से अटका हुआ है। आज थोड़ा जैसे जॉलिन बोल रहा था, मुझे देख के थोड़ा लग रहा था आज कुछ करेगा ये आज। परफेक्ट एग्जांपल देखो ना, उसने कुंबले हैड टू स्टेप डाउन। मतलब कुंबले, मतलब देयर माइंडसेट इज सो डिफरेंट, दे डिडंट वांट थिंग्स अगली। कुंबले स्टेप डाउन एज कोच बिकॉज़ हिज ही डिडंट एग्री विद द कैप्टन, एंड कैप्टन फियर ही हो रहा है, मतलब ही इज गेटिंग वेरी वेरी एग्रेसिव। तो व्हाट ही डिड, ही स्टेप डाउन। और कोई एक इंटरव्यू नहीं था कुंबले ने। हमने सबने स्पेकुलेट किया कि अरे बनती नहीं थी बोल के हटा दिया कुंबले को। कुंबले ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। कुंबले ने इतना ही बोला बस कि उसका और उसकी वाइफ का टिकट बुक था वेस्ट इंडीज के लिए, और उसको प्रीवियस नाइट को बोला कि नहीं आप नहीं जा रहे हो। बट ही कुड हैव डिफेंडेड ना कि क्यों हुआ। ही कुड हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? कैप्टन वाज नॉट, no one does that, and no gentleman will ever do that, you know. It's a sport, so I mean, sad है ये, बहुत sad है। इतना बड़ा organization and the richest मतलब the richest board in the world, people look up to you and ऐसा disarray है। sad. First of all, मुझे फिर से लगता है कि BCCI president should not be speaking out on every decision of the selection committee. Why? He has chosen a selection committee, बस खत्म बात ना। He has many things to look after ना। ग्राउंड्स बेटर हो रहे हैं कि नहीं, फैसिलिटीज बेटर हो रही है कि नहीं, पिच बेटर हो रहा है कि नहीं, रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, बहुत कुछ है देखने के लिए। सिलेक्शन में क्यों जा रहे हो तुम? That's not your job, that's someone else's job to do. That is not। अभी मेरे को सीईओ आके बोलेगा ओ तुम ना स्टैंड अप में तुमने लेट आए थे 5 मिनट, सीईओ बोलेगा। मैं लोगों सीईओ कर क्या रहा है स्टैंड अप पे? Yeah, but I think all this thing proves one thing, correct? Like even if you are a successful captain, you cannot be a successful administrator, correct? It is what it is, because I was happy personally. In fact, everyone probably in this call also would have been happy when Ganguly made BCCI president, correct? But I guess maybe he was successful as an Indian captain, but he will not be as successful as Indian captain as BCCI president. So not all leaders are a good administrator is what I would say. I agree with that, but again, I one thing I disagree. I think this was a failing. This was his failing. I agree, but I think overall he's done a good job of administration. And उसका administration का first job तो है नहीं। उसने अभी इंडिया में जो CAB जो है, CAB का भी तो president type was an administrative position, right? And वहां पे उसने जो किया है अभी मतलब again not to move away from the topic too much, but अभी मालूम है ना तुम्हारा women's का IPL भी हो रहा है, women's IPL भी आ रहा है। women's का उसने already शुरू कर दिया। women का जो salary है after he took on as BCCI president, it has gone up 5 times. अभी ये सारे you know ना, अभी now ये जो ladies have, everybody travels first class now. इसके पहले they used to travel economy. So this was a failing, I agree. He shouldn't have commented, and तूने comment कर दिया है तो फिर then don't नहीं। गांगुली का तो वही हुआ ना, उसने एक comment आग लगा के उसके बाद he backed down। जब अब then if Kohli said that, he should have refuted back, बोलना चाहिए था no, why is he saying that, या फिर show cause notice भेजना चाहिए था जो भी आ रहा है। अगर I don't know if that is true or not, but he should have taken that step. चेतन शर्मा अभी on purpose किया लगता है उसने, just to kind of गांगुली का एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था बोल के BCCI प्रेसिडेंट बना ना, बट वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे ऐसे लगती है, कभी लगती है कि आफ्टर एवरी 6 months गांगुली फील्स कि वो लाइमलाइट में नहीं है, एंड देन ही हैज टू ट्वीट समथिंग, गेट इन्वॉल्वड इन समथिंग टू कम इन द लाइमलाइट। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो हर 6 महीने में कुछ एक कमेंट करता है, एंड जो थोड़ा लेफ्ट फील होता है, मतलब थोड़ा सा कि मुझे चाहिए, पंत टीम में चाहिए। तुम BCCI प्रेसिडेंट, तुम्हारा हर एक ट्वीट मैटर्स इवन मोर, राइट? तुम्हें कमेंट करना है सिलेक्शन, कौन जा रहा है, कौन कैप्टन बन रहा है, इस पे कंट्रोवर्सी होगी बिकॉज यू आर सो पावरफुल। तुम इतने पावरफुल पोजीशन पे हो कि इवन इफ यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन, पीपल विल थिंक इन देयर हेड कि यू आर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन, and which you might as well be, but posting it on such public platform, that I mean नहीं अभी ना, I mean it's a good example। अभी हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में ऐसे कुछ हुआ कि this player, he wants to exit the club, he wants to go on transfer to a different club, right? तो उससे पूछा कि आज के मैच डे स्क्वाड में वो क्यों नहीं है तुम्हारा, so you can field 8 substitutes on the bench,
सो हमारे बेंच में 7 प्लेयर्स थे, तो एक वेकेंट था, तो उसने पूछा कि वो अगर फिट है तो वो टीम में क्यों नहीं है। तो मैनेजर ने बोला कि ही वांट्स अ ट्रांसफर आउट एंड ही इज नॉट विलिंग टू प्ले। फिर इमीडिएटली 2 घंटे बाद प्लेयर ने ट्वीट कर दिया कि नो, आई एम ऑलवेज विलिंग टू प्ले, आई वांट अ ट्रांसफर आउट, बट दैट इज आफ्टर द सीजन एंड्स, बट आई वांट टू प्ले। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। अगले अगले दिन मैनेजर ने बोला कि नो, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई स्पोक टू हिम, नाउ इट्स ऑल क्लैरिफाइड, ही विल बी ऑन द बेंच द नेक्स्ट मैच। खत्म बात होगी ना। कुछ वही तो तो मैं बोल रहा हूँ, जब ये सब तुमने पब्लिक किया तो यू नीड टू कम बैक एंड क्लैरिफाई। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक कि देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन। बट ऑन पर्पस नहीं दिया, अरे बाबा, इसलिए तो प्रेशर में आके इसने ये भी छोड़ दिया। अच्छा किया एक्चुअली, गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, मैच को ऐसा लग रहा है। नहीं, एंड बट अभी हमारा कोई लीडर नहीं है यार, कोई लीडर नहीं है ऑन द फील्ड, ऐसा लगता अरे है। आ जाएगा, रोहित आने के बाद तो सेटल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ट्रू, बट रोहित, वो अभी रोहित व्हीलचेयर में आएगा या ऐसे लेट के आएगा पता नहीं ना। नहीं नहीं, मतलब इतना भी ऐसा नहीं है। आई थिंक उसको प्रॉपर ब्रेक देते रहो। आई थिंक ही वुड बी बैक नेक्स्ट सीरीज। लास्ट 3 years में रोहित शर्मा हैज मिस्ड 35% ऑफ हिज मैचेस इन ऑल फॉर्मेट्स। मतलब वो होशियार है, वो सबकी तरह क्या बोलता है, रोता नहीं है कि बाय बबल। वो इंजर होके खुद ले लेता है ब्रेक। मतलब बहुत अकलमंद आदमी है। नहीं, नहीं, बट मेरे को तो लगता है when you're कोई playing अकलमंद for नहीं है। India, you cannot pick and choose like this ना। अगर वो No, intention कर if रहा you है want to तो pick and choose, leave IPL. If you want to pick and choose, leave IPL. हाँ, Rest in that period. नहीं करने वाला। अपने फिटनेस पे काम करो। अब अभी कैप्टन बनाए तो शायद छोड़ देगा, वो आईपीएल में नहीं जाएगा, क्या पता। I bet पागल कोई नहीं छोड़ेगा IPL, IPL कोई नहीं छोड़ेगा। डेथ बेट पे भी ना ऐसे लेट के बैटिंग कर रहा होगा वो। धोनी भी देखना कितने मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मुझे कई बार लगता है ना, विराट कोहली का भी मुझे लगता है ना कि आरसीबी के साथ हार के ना उसको और चोट लगती है। इंडिया के साथ ऑफ कोर्स इंडिया लास्ट 5 years में ना जीती ज्यादा है ऑफ कोर्स, नहीं, but दुख Kohli, लगता है। if there is one thing you cannot talk about Kohli is this, उसका वो चिढ़ तो जाता है, हारता कहीं पे भी है, वो हारता है वो चिढ़ जाता है बहुत। हाँ, बट मुझे आरसीबी के लिए लगता था कि वो मतलब ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हार्ट, ऐसा लगता था हर बार रो ही पड़ेगा लगता है पिच पे। कोहली का तो मुझे वो लगता था आरसीबी के लिए वो और ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतने टाइम से ट्राई किया ना उसने जीतने का। बिकॉज हाँ, इंडिया के that साथ might be a thing. सक्सेसफुल मिला है, इंडिया के साथ Correct, बहुत इंडिया के सक्सेस साथ। मिला है उसको। और नॉट ओनली दैट, आई मीन इंडिया के साथ भी अभी भी देखो, इवन टेस्ट मैच में जब विकेट गिर रहा था एंड में, तो इंडिया को लग रहा था जब वो 2-3 विकेट चला गया लास्ट टेस्ट में, उसको थोड़ी पता था कि 7 विकेट फिर एक भी नहीं गिरेगा विकेट। बट नहीं, जब जैसे देखो ना उसमें यू कैन नॉट क्वेश्चन। नहीं, बट नहीं, विराट कोहली जब आउट होता है ना, उसका मेरे को लगता है कि एज अ कैप्टन, व्हेन ही वाज कैप्टनिंग ना, व्हेन ही वाज इन चार्ज, ही वाज गिविंग 120%, नाउ ही इज गिविंग 100%। मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो जो एक्स्ट्रा एंड विराट कोहली मेरे हिसाब से इज ऑल अबाउट दैट 20%, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा एग्रेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, दैट मेक्स हिम इवन मोर स्पेशल। नहीं, but Prince, I think you provided the explanation. I think right now he's purposely kind of toning it down because एक तो राहुल के उस पे क्वेश्चन एनीवे आ रहा है कि उसको कैप्टन बना दिया, ये कर दिया, तो वो सोच रहा है मैं अगर वो करूंगा देन राहुल का तो और भी, तो उसको तो ये मेरे ख्याल से द्राविड ने भी बोला होगा ना ये चीज कि विराट यू नीड टू टोन डाउन ऑन द फील्ड। तुम्हें थिंक टैंक में जरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट नहीं, एटलीस्ट first फील्ड पे 2-3 तुम थोड़ा उसने चेयर अप कहा। कर सकते हो। फर्स्ट 2-3 गेम में कोहली हैज टू डू दैट। आई एम श्योर द्राविड ने भी उसको बोला होगा कि अदरवाइज उसका कैप्टन विल गेट अंडरमाइंड। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसका केएल राहुल का ही इज वेरी लो एनर्जी, यू Body कैन नॉट language. दैट लो एनर्जी, थोड़ा एनर्जी होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे aggressive करके झगड़ा करो। मुझे तो लगता है कि बीसीसीआई को ना, each time they travel abroad, they should pay extra money to the local broadcaster कि प्लीज विराट कोहली को alternate फ्रेम में दिखा दिया करो। लेकिन ये देखो ये इस टाइप के प्लेयर्स ना, they are that good and they also want attention. ये एक नेचर ऑफ सम प्लेयर्स हैं। नडाल, फेडरर एंड ये जोकोविच इज वेरी कैमरा हंग्री, and that he's excellent, but he is camera. Some people want the attention. They play better when they have the attention. It should all be about them. केविन पीटरसन, Ronaldo, it should be about them. They are that good, of course. And लोग ये सहन इसलिए करते हैं because they are that good. अभी तुम खेलते हो आशीष नेहरा की तरह and you want attention, तो नहीं मिलेगा ना। तो तुम्हें विराट कोहली होना पड़ेगा, तेंदुलकर होना पड़ेगा अटेंशन के लिए, बट नॉट एवरी ग्रेट प्लेयर वांट्स दैट मच
of attention. नहीं देखो यो सबका एक ये नहीं पॉजिटिव और वो नेगेटिव साइड रहता है राइट. जैसे कुछ प्लेयर्स का है कि उनको लाइमलाइट चाहिए बट वो लोग फिर काफी जो चीज के बारे में दूसरे कमेंट नहीं करते उसके बारे में एटलीस्ट दे आर upfront and they'll comment. Bold enough to say things. Bold enough to say things. Because there are some people जो लोग पोजीशन में होते हुए they are not, मतलब कुछ भी होता है वो कंट्रोल के हाथ धो के बैठे रहते हैं घर में. Vocal नहीं होते. हाँ, so इसलिए you have to strike a balance. I mean you cannot go overboard in both directions. But that's why you have to handle, as a board you have to handle them properly, ना? Because they are very good on the field. वो लोग off the field कैसे हैं, उनको क्या चाहिए वो छोड़ो, but तुम्हें you have to take the best out of them ना on the field basically. तो उनको खुश नहीं रखना है but उनका at least mindset ठीक रखना पड़ेगा सब players का. बट कोहली 2 साल में निकल जाएगा. द वे ही इज फीलिंग प्रेशर करेक्ट 2 साल में रिटायरमेंट भी डाल देगा. उसमें भी कुछ वो करेगा एक कुछ अनुष्का शर्मा ट्वीट डालेगी. वो तो ठीक है. आई थिंक वो लोग गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, पता है ना. विराट कोहली बोलता है सुन मैं ना एक मॉडेस्ट ट्वीट डालूंगा, तू ना एक मेरी तारीफों को पुल बांधना. इससे क्या होगा ना कि मैं खुद से नहीं बोल रहा तारीफ कर रहा बट तू तारीफ कर ले मेरे लिए. ये मतलब ये आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब अनुष्का शर्मा कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू बट प्रॉब्लम यही है कि इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन मीडिया में चाहिए ही क्यों. तुम वैसे ही ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन इंडिया एट दिस मोमेंट. विराट कोहली फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर है विराट कोहली. नहीं चाहिए तुम्हें एक्स्ट्रा ट्वीट की जरूरत नहीं है. चलता है अभी. तुम्हें एक्स्ट्रा ट्वीट की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यू आर एनीवे इन द लाइमलाइट. तुम कुछ ना करो, फ्लॉप हो जाओ तब भी लाइमलाइट में रहोगे. तो उसका लेकिन प्रॉब्लम ये सब पहले से, मैं तो पहले से बोल रहा था, उसका जो स्टाइल है कोहली का, बिकॉज ही इज वेरी आउटस्पोकन करेक्ट. वो मतलब सम थिंग्स ही डज इट अपफ्रंट बिफोर द टाइमिंग. वो पहले से 2 साल से ऐसे ही कर रहा है, नहीं कंटिन्यूड. एंड वो कभी न कभी उसको मतलब बाइट करे और किया ही किया उसने. तो होना ही था. मैं तो पहले से तुझे बोल रहा था कि 2 साल पहले से कि वो जो हिसाब से बिहेव कर रहा है राइट नाउ इट इज ऑल ओके बिकॉज उसका कोच के साथ भी अच्छा सेटिंग है, बीसीसीआई की अच्छा सेटिंग है. एज एंड व्हेन कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया फंस जाएगा, और वो फंस गया अभी एक्चुअली. और फंस गया मतलब फंस तो गया प्लस प्रेशर में आके उसको सब रिजाइन करना पड़ा. दिस इज बैड एक्चुअली. प्लस उसका प्रॉब्लम है और टाइमिंग, एवरीथिंग काइंड ऑफ केम टू हिज फॉर्म आल्सो राइट. फेल अपार्ट. या अगर उसका फॉर्म रहता होगा ही ना, बिकॉज मेंटल प्रेशर है तो तुम्हारा बैटिंग तो अफेक्ट होगा ही होगा. आई थिंक वो उसका मेंटल सॉर्टेड नहीं है. अदरवाइज स्किल सेट तो अभी भी जब डिफेंड करता है ही कैन डू बोथ रियली वेल. जब वो एकदम अच्छा डिफेंड करता है तो अच्छा लगता है, जब अटैकिंग शॉट मारता है अच्छा लगता है. सब कुछ गेम पूरा वही है, इधर ही नहीं है. But India definitely, I hope Rahul Dravid will be able to work on that. India has to work on their play against spin, because India is being caught too many times against spin, which is the most surprising part. And again, not so great spinners. Correct. वो तो है. और मुझे तो निकलना चाहिए. चल अश्विन अब 2-3 नए स्पिनर लेके आ जाने चाहिए एटलीस्ट T20 है उसमें. वो आईपीएल खेलने तो ये लोग को आरसीबी और चेन्नई या दिल्ली करेक्ट. वी शुड गेट न्यू स्पिनर्स एक्चुअली. बहुत हो गया. बिश्नोई को चांस दो अभी, और क्या यार, खिलाओ बिश्नोई को. और बियॉन्ड दैट भी हो ही सकते हैं अच्छे. अपने को पता नहीं है, लाइक डोमेस्टिक से निकाल लो आईपीएल नहीं. बट लॉन्गर फॉर्मेट में कोई भी रणजी बॉलर इज नॉट डूइंग वेल. दैट्स व्हाई तो सिलेक्शन में नहीं आते टेस्ट मैचेस के लिए. टेस्ट मैचेस के लिए एक भी स्पिनर नहीं आता ना सामने, बिकॉज है ही नहीं, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा उतना अच्छा. नहीं यार, मुझे बीच में वो अच्छा लगता था, जैसे वो एटलीस्ट जितना भी देखा था. एंड आई नो, आई मीन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सेस टू दोस प्लेयर्स आर ओनली थ्रू आईपीएल राइट. जैसे श्रेयस गोपाल वो लेग स्पिन करता था, काफी अच्छा करता है. उसका लेग ब्रेक भी अच्छा टर्न होता है, उसका गुगली भी बहुत अच्छा है. एंड ही इज अ रिस्ट स्पिनर. आई डोंट नो इंडिया में जैसे अमित मिश्रा एट वन पॉइंट ही वाज अ गुड बॉलर. उसने इंडिया के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, फर्स्ट गेम में 5 विकेट्स लिया, फिर उसको तो मौका ही नहीं मिला. फिर अक्षर पटेल भी थोड़ा इफेक्टिव होता था अगर उसको लेके आते तो. पता नहीं. अक्षर पटेल ट्रैक्स में आई डोंट थिंक फ्लैट ट्रैक्स में जाडेजा को जैसे मिस किया, बट जाडेजा को जैसे मिस किया ना वैसे नहीं करते, थोड़ा कम करते थे. अगर अक्षर पटेल ने बैट पे ज्यादा मिस किया. जाडेजा एज अ प्लेयर, बट अगेन आई डोंट थिंक वो
वही रिस्ट स्पिनर नहीं है ना फिर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर कितना भी हो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं कभी भी। कुलदीप को लेके आना चाहिए वापस, नहीं तो फिर और क्या, लेट हिम प्ले कम। कुलदीप का तो प्रॉब्लम है कि कुलदीप कहीं पे तो अच्छा खेले पहले। मतलब लेके आना चाहिए यार, मतलब तुम ट्राई करो और क्या। ही हैज ये लोग प्लेड डोमेस्टिक क्यों इंटरनेशनल नहीं क्रिकेट खेलते, देखो। मुझे समझ में नहीं आता। डोमेस्टिक में इन लोगों को फिर, ये लोग जो जिनका फॉर्म चले जाता है, प्ले डोमेस्टिक एंड कम बैक। प्रॉब्लम पता है क्या है? एवरीबडी इज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आईपीएल। जो लॉन्गर फॉर्मेट है हमारा रणजी का फर्स्ट क्लास, उसमें साला कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। पहले के जमाने में मुझे याद है राजू वाजू चौहान वहान तो एकदम दे वुड टेक लॉट ऑफ विकेट्स इन द रणजी ट्रॉफीज, तब भी उनको चांस नहीं मिलता था। जो हमारे फ्रिंज स्पिनर्स थे, ओझा ओझा, दे वर वेरी गुड इन द लॉन्गर फॉर्मेट। ये लोग सब रणजी खेल के ही अंदर आए थे ना। अब क्या है, वो डायरेक्ट टिकट है। आईपीएल में अच्छा खेल लिया तो फिर तुम्हें हर चीज में कंसिडर कर देंगे वो लोग। नहीं बट यू नो ना, तुम्हारा तुमको स्पेस में भेज देंगे। अभी और एक चीज जो हुआ, शिखर धवन वाज इन टेरेबल फॉर्म इन विजय हजारे, बहुत खराब खेल रहा था, पर उसको सिलेक्ट किया इस टूर के लिए। अगेन एज यू सेड, इट वाज बेस्ड ऑन हिज आईपीएल, बिकॉज़ आईपीएल में तो वो बहुत बढ़िया खेला, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से विजय हजारे में ही वाज अ बिग फ्लॉप। एंड विजय हजारे में सब लोगों ने बकेट फुल ऑफ रन्स किए, 100। वो वेंकटेश अय्यर ने 400, ऋतुराज गायकवाड़ ने 500 मारा है 6 मैचेस में, 7 मैचेस में, और उसमें शिखर धवन का फॉर्म वाज टेरेबल, बट ही स्टिल गॉट सिलेक्टेड। वही है, अभी डोमेस्टिक को हैज टेकन द बैक सीट अनफॉर्चुनेटली। एंड T20 में आई एम ओके सिलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल, बट एटलीस्ट बाकी फॉर्मेट में वनडे और उसमें यू कैन नॉट यूज आईपीएल एज अ बैरोमीटर, राइट? बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट गेम्स। नहीं, बट उस बेसिस पे तो शिखर धवन ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए। ही इज नंबर 3 ऑन द लिस्ट फॉर वनडे एवरेजेस। ओनली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इज बेटर इन द लास्ट 3 years. He is averaging more than 40 in the last 3 years. How can you drop a player who's averaging more than 40 and strike rate is 89? You can't drop such players, ना। और वो हमेशा क्रूशियल, वो अब्रॉड में, इनफैक्ट वो इंडिया से बेटर अब्रॉड खेलता है। करेक्ट, वो तो है। उसको मतलब हर बार ड्रॉप करते हैं बोल के कि वो फ्यूचर नहीं है, वो बुढ़ा हो गया है। हर बार उसको ऐसे ड्रॉप करते हैं। तो मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। T20 में आई डोंट थिंक ही इज दैट ग्रेट। मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, ओनली वनडे इंटरनेशनल्स। उसको टेस्ट में भी मत खिलाओ, बट वनडे इंटरनेशनल में आई फील कि ईच टाइम इज ड्रॉप बिकॉज ही इज बैड इन T20। मतलब हर बार ही T20 में गंदा खेला तो वनडे में भी ड्रॉप कर दो, टेस्ट में गंदा खेला तो वनडे में भी ड्रॉप कर दो। अरे तीनों अलग फॉर्मेट्स हैं यार। बराबर है। मेरे को ऐसा लगता है टेस्ट में रख लेते तो शायद हम हारते नहीं थे। वो तो आई थिंक, मतलब अभी का तो टेरिबल थे सब, कैसे आउट हो रहे थे, मतलब बहुत मन कैसे आउट हो रहा था। अबे मतलब तुमको पता है बैट डालोगे तो आउट हो गए, तो मतलब कंपल्सरीली बैट आ ही जाता था उसका। मतलब टेक्निक में ही प्रॉब्लम है मतलब। डीन एडगर बहुत ही लिमिटेड मींस का प्लेयर है। जो उसने किया हमारे साथ, हमारे सो कॉल्ड इतना ऑसम अटैक, मतलब ही रिमाइंड्स मी ऑफ कैटिच। बहुत ही लिमिटेड है। ही डजंट हैव द अरे ऑफ स्ट्रोक्स। पता नहीं कैसे खेला इस बार। अगर टेस्ट मैचेस में उसने नॉट ओनली हमारे साथ, उसने ही इज प्लेड सम दीस काइंड ऑफ इनिंग्स अदरवाइज आल्सो। बट ऐसे आउटस्टैंडिंग पूरा टेस्ट ही जीता दिया उसको कैप्टन इसीलिए बनाया बिकॉज़ ही इज प्लेड लॉट ऑफ दीस इनिंग्स। पूरा बॉडी ब्लो खा के 100 बनाया, 150 बनाया। पेशेंस है ना, पेशेंस है। यू हैव टू प्ले द गेम टाइम। धवन को तो ऑनेस्टली वही केएल राहुल की वजह से धवन आउट है, बिकॉज केएल राहुल का रिकॉर्ड भी तो बढ़िया है ना वनडे में, 46 अभी तो अच्छा भी खेला है ना, वो तो अच्छा भी खेला है अभी। एक ही प्रॉब्लम है साला, एक सेंचुरी मारते बाद में पूरा सीरीज ये हक देता है। बट ओनली थिंग देखो, वही आई एम सरप्राइज्ड उसका हाउ डज ही स्टिल एवरेज 46। उसका वनडे एवरेज इज स्टिल 46 पॉइंट। उसका भी हाई है। मैं तो टेस्ट की बात, धवन से भी ज्यादा है उसका एवरेज वनडे। टेस्ट की बात कर रहा हूं, वो टेस्ट मैचेस की बात कर। नहीं मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट में तो उसका रिकॉर्ड भी खराब है ना। टेस्ट में तो एक मारता है सेंचुरी, एक सेंचुरी मारता है बाद में कुछ करता नहीं है। वो एक सेंचुरी फर्स्ट टेस्ट मैच मारता है। नहीं बट वो जो मारता है वो एक इनिंग्स पूरे सीरीज में याद रहता है। वो तो है। देखो टेस्ट में ऑनेस्टली आई थिंक राहुल स्टिल हैज टू प्रूव, इन माय माइंड राहुल हैज टू स्टिल प्रूव हिज, बिकॉज ही इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? बट वनडे में जो नहीं, शिखर धवन का बात कर रहा था। शिखर धवन तो इसलिए आउट होता है बिकॉज केएल राहुल को ये कोहली सपोर्ट करता है एंड उसका रिकॉर्ड भी है ना। यू कैन नॉट से कि धवन का रिकॉर्ड बहुत सुपीरियर है उससे, क्योंकि ही एवरेजेस 46। हाँ बट धवन इज, उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। धवन इज 45.9 आफ्टर प्लेइंग 200 मैचेस। नहीं स्टिल 45 एवरेज।
147 मैचेस। हाँ, नहीं, अरे दोनों को खिलाओ ना। देखो वनडे में मेरे को लगता नहीं है कि एक जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता। अगर नहीं खेल तो मत खेलो इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन ने भी मिडिल ऑर्डर में खेला है। ऑफ कोर्स विल प्ले एज एन ओपनर। सबसे पूछोगे तो बोलेगा वो ओपनिंग ही करूंगा मैं। सबको तो सब ओपनिंग नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 4 अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, वो बट चारों को ओपनिंग करने तो 2 को हम स्क्वाड में ही नहीं लेंगे। साला मिडिल ऑर्डर में कोई कंसिस्टेंटली खेलता ही नहीं है। तुम लाओ धवन को रखो बेंच पे तो रखो एटलीस्ट। एक्चुअली ऑन दैट टॉपिक, एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया था, मतलब पता नहीं वो कितना स्पेक्युलेटिव है, टाइम्स पे आया था। The reason why all this happened, correct? This started happening in Dubai after when IPL was going on, correct? When I think Kohli first time announced retirement, or he's going to retire as a captain from T20, correct? Retire, or I wouldn't say retire, but he want to quit the T20 captaincy to manage the workload, correct? तो उसमें लिखा गया था कि when they had that unofficial meeting, and it was not an official meeting where minutes of meeting लिखे जाते, correct? It was with Ganguly and other selectors and you know what not. तभी उसने क्या बोला था कि ऑब्वियसली ही डजंट वांट टू कंटिन्यू एज अ कैप्टन, और उसने वो टाइम में नाम भी सजेस्ट किया था राहुल का। हाँ। राहुल का। तो instead of Rohit Sharma. Yeah, so that did not go well with BCCI ये तो and पूरा selector. पावर गेम है। हाँ, तो that did not go well. उसके बाद ही, और ऑन द टॉप ऑफ इट वो गांगुली ने, मैं बोलता हूँ कि मतलब गलती की, बट गांगुली ने बोला तो होगा, बट अभी मीटिंग में ऑफिशियली बोला नहीं है, या फिर देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? व्हेन यू इंडिकेट समथिंग एंड समझने में डिफरेंट हुआ रहेगा, तो गांगुली को लगा कि मैंने कन्वे कर दिया मैसेज कि तू अब अनाउंस मत कर एंड स्टे बैक, बट उसने कर ही दिया है, करेक्ट, इवेंचुअली। तो वहां तो वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया। ऑन द टॉप ऑफ इट वो केएल राहुल को पुश कर रहा था, तो दिमाग हट गया वो लोग सिलेक्टर का भी, और रोहित को बना वही। तुम लोगों को मिले तो चेतन शर्मा का वो देखना, कॉन्फ्रेंस, चेतन शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना। उसने कैटेगोरिकली, उसने हर क्वेश्चन का उसने ये बोल दिया, व्हाई, आई डोंट नो व्हाई कोहली इज सेइंग दिस, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, मैंने, 2 और सिलेक्टर ने उसको क्लियरली बोला मत छोड़ो कैप्टेंसी। तो एंड बिकॉज उसने कुछ वो नहीं छोड़ा ना, प्रेस रिपोर्टर यूजुअली क्या होता है, तुम एम्बिगुअस आंसर देते हो तो प्रेस रिपोर्टर और 10 क्वेश्चन और पूछते, नहीं बताओ, नहीं अच्छा, वो घुमा फिरा, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू आस्क अगेन, बिकॉज उसने तो कैटेगोरिकली बोल दिया ये चीज। हाँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई, मतलब व्हाई इन द हेक, अगर ऐसा सच में किया होगा कोहली ने, व्हाई डिड ही सजेस्ट समवन्स नेम, व्हिच इज रियली बैड एक्चुअली। मतलब देन यू आर ट्राइंग टू, I'll tell you why he was smart, because उसका कैप्टेंसी was going on a downstride at least limited overs क्रिकेट में। तो उसको लगा कि T20 का मैं छोड़ देता हूं और राहुल को पुश करूंगा, तो क्या होगा, रोहित शर्मा तो मेरे उम्र का है, फिर वो कभी नहीं कैप्टन बनेगा। और अगर मैंने टेस्ट में भी बुरा किया, टेस्ट मैचेस में हारा ना, तो रोहित शर्मा को कभी लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो कोई भी फॉर्म में कैप्टन नहीं है ना। ये सब पावर गेम है ना, ये सब पावर गेम है, पावर गेम करोगे, बट तुम किसी सिलेक्टर हुआ ना, बैकफायर हुआ ना। हाँ, वही बोला, प्रॉब्लम हो गया ना वो तो, बिकॉज सी दैट एनीवे किसी को अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा जॉब के बारे में, कोई ऐसा कोई सजेस्ट करेगा। एंड कोहली इज अ पावरफुल गाय। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक होता है तुम्हारा, जैसे कि अब मैं बोलूं कि नहीं मेरे को ना लगता है राहुल ज्यादा टैलेंटेड है, तुम बोलो कि रोहित शर्मा ज्यादा टैलेंटेड है, इसमें देयर इज अ बैलेंस टू दैट आर्ग्यूमेंट, राइट? अब मैं बोलूं नहीं मेरे को लगता है रवि बिश्नोई इज मोर टैलेंटेड, अब वो कुछ ज्यादा ही लेफ्ट फील्ड हो गया ना। राहुल ने कहां कैप्टेंसी कहां दिखाई, तुम उसको कैप्टन कैसे बना सकते हो? नहीं, नॉट ओनली दैट, एक तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? व्हेन समबडी आस्क्स यू कि बताओ, सजेस्ट करो कैप्टेंसी छोड़ने से पहले, तब तुम सजेस्ट करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे तो आउटराइट ही सेड कि नो, यू शुड कंसिडर वो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सिचुएशन हुए जहां पे पीपल हैव सजेस्टेड कि किसको कैप्टन बनाओ। यू नो ना, तुम्हारा व्हेन कुंबले वाज अबाउट टू लीव द कैप्टेंसी टेस्ट मैच का, सचिन तेंदुलकर को ऑफर किया था कैप्टेंसी। उसने उसको पूछा, उसने क्लियरली उसने मना तो किया, एंड ऑन आस्किंग हिम ही थिंक, उसको पूछा सचिन को कि कौन यू थिंक who else can be a captain, then he has suggested Dhoni's name. So that is what I'm saying, that's the difference. एक चीज होता है तुम्हें पूछने पे you give your opinion, and यहाँ पे तुम outright बोल रहे हो कि केएल राहुल को कैप्टन बनाओ। वो जरूरत क्या था ना, तू कैप्टनसी छोड़ रहे, तू you should have just left, even if you don't want to recommend anybody, चुप रहो, बोले कि I don't want to do it, please give it to somebody else, right? वो करके you end it there and let the selectors take the decision. And I think he was being too clever. वो पूरा प्लॉट कर रहा था ऐसे, too clever to his own liking. दादा
ज्यादा क्लेवर बनोगे तो वो द वर्ल्ड हैज अ वे टू किक योर बैक साइड। करेक्ट। और प्लस तो देखो राहुल को आई थिंक सब जगह से फेवर्स मिल रहा है। अभी वो लखनऊ का कैप्टन बन गया, 15 करोड़ का ये ले 17 लिया, तो आई करोड़ थिंक हाईएस्ट पेड, 17 करोड़, मोर सॉरी देन कोहली, 17। मोर देन कोहली, मोर देन रोहित शर्मा। करेक्ट, रोहित शर्मा ठीक Yeah. है। और पांड्या का भी निकल पड़ा, 15 करोड़ दिया उसको अब अहमदाबाद 15 में। करोड़ मिला ना उसके अहमदाबाद मतलब वो में। साला बॉलिंग भी डालता नहीं है, किस लिए दिया उसको 15 करोड़, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है। शिखर धवन का वनडे रिकॉर्ड देखो आप, 45.87 एवरेज, स्ट्राइक रेट 93। नहीं, मतलब रिकॉर्ड तो उसका ऑफ कोर्स रिकॉर्ड में उसका औसम है कोई वो तो। प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एंड प्लस यू, आई मीन डोंट फॉरगेट दिस एस्पेक्ट, जो एस्पेक्ट लक्ष्मण का भी था, बिग मैच प्लेयर, हमेशा बड़े टूर्नामेंट में अच्छा खेलता है। आईसीसी इवेंट्स में देखो उसका रिकॉर्ड। करेक्ट, वो मतलब जस्ट वो बिकॉज वो अलग। ज्यादा सोशल मीडिया savvy नहीं है ना, धवन भी जरा बोलता नहीं है, सोशल मीडिया savvy नहीं है। मतलब तो ऑनेस्टली विराट कोहली का ये मतलब दिस ऑलवेज अमेजेस मी, यू नो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग एल्स, विराट कोहली का अभी हमको लग रहा है हम लोग उतना फॉर्म में नहीं है। उसका लास्ट 8 ओडीआई इनिंग्स में उसने 650 बनाया। नहीं, उसका तो ओडीआई में अच्छा ही रिकॉर्ड है, अभी भी अच्छा ही, उसका टेस्ट मैच में बहुत बुरा है। रिकॉर्ड तो उसका टेस्ट में भी अच्छा, मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड तो, ओवरऑल नहीं बोल रहा, बट मेरे को अगर कोई पूछता कि विराट कोहली क्या उसका एवरेज लास्ट 8 मैचेस में ही एवरेजेस 65 या 70, मैं तो आई वुड हैव नेवर से, आई वुड हैव सेड तू जोक कर रहा है। नहीं, बट मुझे पता है कि वो लिमिटेड ओवर्स में अच्छा खेल रहा है। वी आर यूज्ड टू सीइंग हिम एक्चुअली, वही 100 उसका कन्वर्जन रेट जो था ना, इट वाज अनबिलीवेबल। I really think Virat Kohli is even much better one-day international player than T20. T20 में फिर भी थोड़ा हड़बड़ा जा सकता है, बट हाँ, बिकॉज उसका मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल की तरह वो उतने बिग शॉट्स नहीं है ना, जितना उनका बिग शॉट्स है। 50 ओवर अगर मुझे बस, और अगर बट ऑल्सो फिर भी उसने टी20 में भी बहुत मतलब मैच विनिंग नहीं, उसने एक इंटरनेशनल में 3-4 साल के पीरियड में, और वो भी एकदम डिफिकल्ट गेम्स में, इंडिया का हालत खराब, और वहां पे ऐसा इनिंग्स किया है। का गेम थोड़ा चेंज हो गया है मुझे लगता है। अभी वो जितना मिनिमाइज कर सके रिस्क करता है, दैट इज नॉट योर टिपिकल T20 स्टाइल, बट वो बहुत चेस कर रहा है, स्पेशली अगर चेसिंग का उसका ब्यूटी ये था, उसका टी20 बैटिंग का जो मुझे ब्यूटी लगता था इंटरनेशनल में, कि वो करेक्ट शॉट्स खेल के एकदम सही टाइम पे एक्सेलरेट करके खेलता था, मतलब वेरी वेरी मेथड बट आई आल्सो फील कि कोहली प्रॉस्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट मिडिल ऑर्डर आल्सो, धोनी एंड रायना एंड युवराज, they were good at singles and that really, अब कोई सपोर्ट ही नहीं है कोहली के लिए। साला वो एक एंड से बैटिंग करे, सोचो वो he is looking for 5 singles and over, साला वो अपोनेंट तो टिक ही नहीं रहा है वहां पे, आउट हो जाएगा या तो बॉल वेस्ट करेगा। धोनी एंड रायना एंड युवराज, वन थिंग दे ऑलवेज डिड वाज टू रोटेट स्ट्राइक। अभी आया था तो स्ट्राइक रोटेट करता ही नहीं है इंडिया का, जब मिडिल ऑर्डर जब खराब खेल रहा था, तब एक मीम आया था ना, जहाँ पे धोनी, रायना और युवराज बैठे हैं, एक तो इन्होंने मीम बनाया था, वो हेरा फेरी में, वो जब एक सीन है ना, जब वो हेलमेट, वो परेश रावल, सुनील शेट्टी और वो बैठ के ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वैसे मीम आया था कि युवराज, धोनी और वो बैठ के देख रहे, सोच रहे कि क्या मिडिल ऑर्डर है ये। और अग्रीड, लेकिन कोहली एज अ लीडर और एज अ कैप्टन, आई थिंक उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था टीम बनाने का। करेक्ट, कोहली ने उसको टीम बना के दिया था, गांगुली ने धोनी को बना के दिया था। वैसे कोहली अभी जो नया कैप्टन है उसकी तो वाट लगी हुई है, बॉलिंग अटैक अच्छा है लेकिन बैटिंग तो डिसरे में है, वो खुद तो मतलब प्रॉब्लम है, मतलब ही शुड हैव एटलीस्ट हैड समवन। वो क्या करेगा अभी, इट्स अ बैड। अब विराट कोहली को समझ में आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने 15 साल क्या किया है बिफोर गांगुली, ड्राविड 7-8 साल क्या किया है बिफोर ड्राविड, लक्ष्मण केम अलोंग एंड एवरीबॉडी केम अलोंग। उसके पहले ऐसे ही होता था ना, वो कितना भी अच्छा खेल ले, कितना भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो तुम मेंटल, मतलब यू आर टेकिंग डबल प्रेशर कि यार मैं तो अच्छा खेल ही लूंगा अपना पार्ट, पर दूसरा एंड में कौन कुछ करेगा। वो रूट का अभी हाल ऐसा ही है, जो रूट का बेचारा कितने रन, जो रूट तो मतलब माइंड बॉगलिंग खेल रहा है वो, और वो बेचारा कोई और बेचारा कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, हालत खराब है उसकी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी, इंडिया में डबल सेंचुरी, एशेज में, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी। जो रूट कितना रन बना रहा है अकेला, बॉलिंग भी डाल रहा है, जो रूट विकेट भी ले रहा है, लुक्स लाइक अ ड्रीम। जो रूट जब अच्छा खेलता है ना, तब मतलब वो स्टीवन स्मिथ लुक्स लाइक शिट इन फ्रंट ऑफ रूट। मतलब स्टीवन स्मिथ इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्ट मैच बैट्समैन, बट जो रूट व्हेन ही प्लेज वेल,
looks absolutely brilliant. ट्रेविस हेड ने अपना पूरा करियर को टर्न कर दिया अभी वो हाँ, 2 वो साल तो तक खेलेगा अभी। बट मुझे फिर भी वो अकम्प्लिश प्लेयर नहीं लगता है, वो मतलब नहीं वो फ्लूक तो था ही है। उसका तो बुमराह ने उसका बैंड बजा दिया था, बुमराह के सामने। फ्लूक है, बट वो फ्लूक है, अभी भी फ्लूक ही है, मतलब आई डोंट थिंक वो, आई थिंक अननेसेसरी वो जो हैरिस का जगह गया ओपनर का, आई थिंक कौन वो ख्वाजा मिडिल ऑर्डर ही खेलना चाहिए था लास्ट मैच में, और ओपनर वैसे ही रखना चाहिए था, ओपनर का प्लेस खा गया ख्वाजा, और वापिस सेंचुरी मार दिया साले लास्ट मैच में भी, नहीं, तो सेंचुरी किया जो भी रन। 2 सेंचुरी मारा हाँ उसने मैच में। हाँ, बट वो इंग्लैंड जीत जाता था वो मैच, साला घुसा दिया मैच अननेसेसरी। एनीवे, इंग्लैंड का टेस्ट मैच में तो बहुत बुरा हाल है, इंडिया मतलब के जैसा ही हालत है उनका। पता चला कि ये जो इंडिया generation, इंडिया ने सही जीता था, वे सेम टीम था हमारे सामने लास्ट ईयर, सेम बॉलिंग अटैक, सेम बैट्समैन, आई थिंक इंडिया सही निकाला गया दिखा दिया, जबरदस्त दिखा दिया। वो इंडिया ने कैसे जीता, और उसके बाद इंडिया का इतना फास्ट डाउनफॉल हुआ, इट्स अमेजिंग। Very sad. बट तू देखेगा I ना think तो पूरा it's टीम अलग था, पूरा टीम यंग था, मालूम है, वो डिफरेंट है वो। आई थिंक वो जो सीरीज जीता ना ऑस्ट्रेलिया का, वो अनयूजुअल था, लाइक एवरीवन वाज न्यू इन दैट सीरीज एक्चुअली, कैप्टन नया, बॉलर नए, पुजारे रानी थे ना, बस दो जन ही तो थे, बाकी से तो पूरा का पूरा टीम नया था, but वो ओपनर उन्होंने भी नए। crucial innings खेले थे ना। अश्विन ने भी हाँ, काफी अच्छा खेला था, मतलब नो डाउट अबाउट इट, बट वो टीम अलग था, वो आई कैन टेल यू, सबके पहले दूसरे गेम थे वो लास्ट मैच में, तो गाबा में तो बट अनबिलीवेबल था। इसलिए मैं तो मुझे लगता है कि इस बार अभी टेस्ट मैचेस में ना कोई भी टीम जो नंबर 1 भी होगा ना, वो एक्चुअली दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, दे आर मोर कंसिस्टेंट देन द अदर प्लेयर्स, सॉरी द अदर टीम, दे आर नॉट लाइक द ऑस्ट्रेलियन टीम और द वेस्ट इंडीज टीम ऑफ द गॉन बाय एरा। ये लोग नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज बाकी लोग आर इवन वर्स। बट बट यार मेरे को पैट क्यूमिंस को देखता हूँ, क्या गजब बॉलिंग डाल रहा था बंदा यार, वो मतलब अभी भी मुझे मालूम कुछ हो नहीं रहा था, उसने 2 विकेट निकाले थे यॉर्कर डाल के, ओ मतलब गजब प्लेयर है वो, गजब प्लेयर है, ही इज देयर नंबर 1 बॉलर, एंड मतलब एंड फास्ट बॉलिंग कैप्टन बन गया भाई अभी वो। बट जबरदस्त बॉलिंग डालता है यार बंदा, मतलब अनबिलीवेबल है वो। Ashes का he was the highest wicket taker also, his first series as captain and highest wicket taker in Ashes। और कोविड में एक मैच घुसा दिया, नहीं तो और भी विकेट मिलते थे, वो तो अच्छा वाला मैच घुमा दिया उसने। चलो वन लास्ट, पता है जो रूट केन विलियमसन और विराट कोहली में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, सबका एवरेज थोड़ा स्क्यूड है, जैसे केन विलियमसन को तो बहुत स्क्यूड है, होम में 65 एवरेज है और अवे 41 एवरेज है सिर्फ, और जो रूट का बहुत इक्वल है, मतलब उसका थोड़ा एवरेज ड्रॉप हुआ है, बट ही इज एवरेजिंग 52 एट होम एंड 47 इन एट अवे कंडीशंस, और 1400 होम में और 900 बाहर है, तो जो रूट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और स्टीवन स्मिथ तो छोड़ ही दो, मतलब स्टीवन स्मिथ तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, ब्रैडमैन है वो तो पूरा, तो हर जगह अच्छा एवरेज है। अच्छा हो गया वो खेला नहीं साला, एक भी सेंचुरी मारा नहीं, आई एम हैप्पी, एशेज में एक भी मारा नहीं, पनौती एवरेज साला, था उसका सिर्फ उसमें, पनौती साला, नहीं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है वो मारता है ना, तो बहुत मतलब मेरे को इतना बुरा लगता है, इसे अच्छा मारा है, भले जीते, बट वो एक भी सेंचुरी मारना नहीं चाहिए, वो जब तक कोहली सेंचुरी नहीं तब तक उसका एक भी सेंचुरी होना नहीं चाहिए। ऐसा तो होने ही नहीं वाला, स्मिथ होगा देख, कोहली मारेगा अभी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, कोहली मारे ना मारे, स्मिथ मार देगा। पता नहीं, मतलब ये 5 मैच में नहीं मार पाए, विच इज वेरी 3 अनयूजुअल। साल पहले सम पीपल वर थिंकिंग कि मतलब लास्ट 3 साल से 2.5 साल से वो ही इज नॉट बीन एबल टू ओवरटेक पॉन्टिंग, कि वो 71 इंटरनेशनल 100 ये 70 पे अटका पड़ा है। आई मीन उसके अपना रेगुलर रेट में जाता तो वो तो 90 तक, मतलब सचिन के बराबर पहुंचने वाला होता, ही वुड हैव बीन 10-12 पीछे, बट उसने पॉन्टिंग को भी बीट नहीं किया अभी तक लास्ट 2.5 साल से। डिफिकल्ट है वो। उसने भी सेंचुरी नहीं मारा है? किसने? स्टीवन स्मिथ सेंचुरी मारा 2.5 साल से? नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कोहली जो था, स्टीवन स्मिथ तो हर एक सीरीज में वो 70 पे अटका हुआ है ना 2.5 साल से, वो पॉन्टिंग है 71 इंटरनेशनल 100, उसका 70 है, सो पीपल वर प्रोजेक्टिंग कि वो तो दैट इज व्हाई आई से 21 तक वो सचिन के पास, दैट इज व्हाई आई से कि प्लेयर्स आएंगे और प्लेयर्स जाएंगे और लोग इंटरपोलेट करते रहेंगे। 2008 में मुझे अभी भी याद है, एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड देखो सचिन, ओह माय गॉड, एलिस्टर कुक इज बेटर देन तेंदुलकर, he has scored 1 century more at this age. If you interpolate it into 100 into 200 test matches,
he will break all records. अगर इंटरपोलेशन से रिकॉर्ड्स होते ना तो बहुत लोग बहुत तब कामली ब्रैडमैन होता. नहीं, because it's important factor to consider is almost 95%, 99% people towards the end of their career, usually have a lean patch. तो तुम वो same level पे extrapolate करना तो is even मतलब logically doesn't make sense, because तुम यूजुअली कंपेयर कब करते हैं, जब करंट प्लेयर पीक में होता है उसको कंपेयर करते हैं जिसका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है. वो तो दैट इज ऑटोमेटिकली स्क्यूड, बिकॉज जिस बंदे का करियर खत्म हो गया उसका ही इज ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट लास्ट लीन पैच, तो उसका रिकॉर्ड तो तब थोड़ा कम हो गया ना उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से. 59 बिकॉज दोनों 59 थे ना, पॉन्टिंग और वो दोनों 50-59 थे. सचिन का तो 59 से 53 पॉइंट समथिंग हो गया ना, वो होगा ही. तो अगर एक बंदे का नहीं हुआ, सिर्फ एक बंदे का नहीं हुआ, संगाकारा उसका तो बढ़ गया, बल्कि he ended up at 59. वो तो खतरनाक प्लेयर था. वो तो स्मिथ भी वही है, 61 एवरेज है. वो अपना प्राइम करियर चल रहा है ना अभी भी. संगाकारा का तो खत्म हुआ, वो 40s में था. वो he was in the mid, जब वो कीपर एज अ कीपर खेलता था, he was in the mid 40s. वहां से लेके उसने he ended up at 59. मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अपने पीक में रिटायर हुआ है. इट्स नॉट लाइक कि उसका करियर डाउन होने लगा तभी रिटायर नहीं हुआ, इसलिए उसका 59 पे है. अगर और वनडे में और वनडे में तो उसने 4 बैक टू बैक सेंचुरी लगा दिया वर्ल्ड कप में. हाँ, वही मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई लोग पीक पे रिटायर होते, कोई डाउन होने के बाद. तो उसने पीक में रिटायरमेंट लिया संगाकारा ने. उसको यूके जाना था, व्हाटएवर में बी द केस, करेक्ट. उसने वो स्मिथ, लाइक ग्रिम स्मिथ, उसने भी पीक में रिटायरमेंट लिया. तो तुम कब रिटायरमेंट लेते हो उसके ऊपर है, मतलब आइडियली या टाइमिंग ऑन द. बट गाइस, सो वन लास्ट क्वेश्चन. अभी रहाणे और पुजारा को who's going to replace them in the test? First of all, do you think they're going to play in the next series? No chance. So I think Rane will be dropped from the squad. Pujara will still make the squad. I get a feeling both are going to be dropped. I think that Rahane is going to be dropped. Pujara may not be dropped. And who's going to play? Who's going to play for Rahane? No, I sincerely hope both are dropped. And who's going to play? India में next match, next कहाँ है series? Next test match? India में है ना? Next में. West Indies में. किसके? नहीं, वेस्ट इंडीज वनडे और T20 है, टेस्ट मैच नहीं है. उधर वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच नहीं है, तो कहाँ है नेक्स्ट टेस्ट मैच? जो भी है, आई थिंक कहीं पे भी हो, पुजारा और राणे नहीं रहेंगे. अकॉर्डिंग टू मी, पुजारा को गिल रिप्लेस करेगा और राणे को श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर का I am happy with that selection. I want Ayyar and both in. Again, if you want everyone to open, then नहीं होगा. तुम्हें अगर करियर बनाना है तो हर जगह पे खेलना पड़ेगा. नहीं, वन डाउन चलेगा. टेस्ट में तो करियर का बस लग नहीं रहा है. टेस्ट में nobody is going to line up to open. उल्टा. हाँ, बट गिल को हमेशा बोलते नहीं वो ओपनर ही है, नहीं तो ओपनर है. खिलाओ मिडिल ऑर्डर में, खेल लेगा मिडिल ऑर्डर में. वन डाउन खेलना चाहिए उसको. पुजारा की जगह लोग ऑप्शंस है तो अभी क्यों नहीं खेलेगा? वन डाउन आई थिंक उसको खेलना चाहिए. अय्यर को खेलना चाहिए. नहीं, अय्यर तो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा. वन डाउन अय्यर का तो गेम बहुत लूज है. he's got a very good game. वो तो गिल का तो और लूज है. नहीं, मुझे लगता है गिल का थोड़ा उससे तो टाइटर है. थोड़ा कॉन्फिडेंस. वो शॉर्ट बॉल से बहुत स्ट्रगल करता है. अय्यर का तो प्रॉब्लम है, he struggles too much with the short ball. और वो भी वनडे में स्ट्रगल करता है, तो टेस्ट में क्या करेगा? सीख जाएगा रे, क्या टेंशन है. तो तू बोल, मेरे को लगता है कि गिल का जो 40 वाला है ना, 40 बना के आउट हो जाता है, वो 40 बना के ओपन कराना चाहिए. बिकॉज ओपनिंग में ना वी नीड 80 for 1, वी डोंट नीड 0 for 1. तो अगर वो 40 रन बना रहा है मिडिल ऑर्डर से, बेटर है कि वो ओपनर में बनाए वो 40 रन. नहीं, मुझे पता नहीं उसका बैटिंग साउथ अफ्रीका में देख के श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है हनुमा विहारी को खिलाओ 5 पे. ओके, तो तू बोल रहा है कि अय्यर की जगह पे हनुमा विहारी बैट एट 5. बिल्कुल ले लो, क्योंकि I also हनुमा विहारी इज मोर सॉलिड, राइट? और खेलता है श्रेयस अय्यर. मैं शायद श्रेयस का इस बार बैटिंग देख के आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. नॉट दैट रन तो बहुत लोगों ने नहीं बना, जिस तरह से वो आउट हुआ, ही वाज स्ट्रगलिंग. जिस तरह से जो रन्स बनाए भी, बहुत स्ट्रगल करके बनाए. नहीं, विहारी डिजर्व्स हिज चांस. हाँ, तो उसको बहुत देर स्क्वाड नंबर पे खिलाते हो, 5 पे खिलाओ उसको. कोहली विल बी 4. नंबर 3 पे जो भी शुभमन, आई एम गुड विद शुभमन गिल, कि शुभमन गिल में है,
he has got that extra time as a batsman. अय्यर से कंपेयर करो तो टेस्ट मैच के लिए तो आई थिंक शुभमन गिल को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. And शुभमन गिल has to work on one side of his game. वो जो ऑफ साइड में स्क्वायर खेलता है ना, वो बहुत अजीब तरह से खेलता है. वो बहुत अवे फ्रॉम द बॉडी. वन फॉल शॉट, उसका इज वन फॉल शॉट आउट. एक चीज तो बोलना पड़ेगा, 10 रुपए की पेप्सी अय्यर बाई सेक्सी, वो तो टीम में होने चाहिए. ये कौन क्या है मुझे समझ. बट अय्यर का भी वही लगता है मुझे, जो मुझे रहाणे का लगता था कि मतलब वो 20 रन अच्छा लगता है, उसके बाद आउट हो जाते हैं. कन्वर्जन नहीं है उसका. जो मुझे अच्छा लगता है. मुझे तो गिल का जो लेग साइड गेम, आई लव दैट गेम यार. वो क्या वो फ्लिक मारता है, एक स्ट्रेटिश फ्लिक मारता है, एक फ्लैट फ्लिक. हाँ, पुल मार. क्या टेनिस बॉल, टेनिस की शॉट मारता है. टाइमिंग इन पावर. मुझे तो अय्यर अच्छा लगता है. वो तो टेस्ट में भी अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. आई थिंक आई लाइक हिम. इंडियन पिचेस में तो भैया सभी शेर हैं. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, बट लॉन्ग रन देना चाहिए. रहाणे नहीं था इंडियन पिच पे. रहाणे इंडिया में कभी खेला नहीं. नाम मत ले रहाणे का. रहाणे कहीं पे भी कंसिस्टेंटली नहीं खेला. इंडिया में आई थिंक एवरेज इन द 20s इंडिया में. करेक्ट, वही बोल रहा हूँ. तो ऐसा बोलेगा इंडिया में सब शेर है, ऐसा नहीं है भाई. एंड आई एम सेइंग कि रहाणे मैक्सिमम लोग शेर है इंडिया में यार. इंडिया में जो भी है वो टफ. इंडिया में किसी को भी खिला दो. इंडिया में आई डोंट केयर, एनीवन कैन प्ले. इंडिया में जयंत यादव का भी 100 है भाई. करुण नायर का भी 100 है. वो जाने दो. लेकिन उसने जो सेंचुरी बनाई थी ना अय्यर ने, वो डिफिकल्ट इस पे मारा था. किसी ने मारा नहीं था वो पिच पे, और उसने रन बनाए थे. नहीं ठीक है, बट उसने अभी इसमें भी दिखा दिया ना कैसा खेला उसने साउथ अफ्रीका में. मेरे हिसाब से तो ये सीरीज डिस्काउंट करो यार. ये सीरीज डिस्काउंट करो. मेरे हिसाब से तो जो लोग, मैं होता था बोलता कि तुम साला अब्रॉड में खेलो, तभी तुम्हें इंडियन मैचेस में मैं तुम्हें एवरेज बढ़ाने दूंगा, वरना इंडिया में सिलेक्ट ही नहीं करूंगा तुम्हें मैं. साला तुम 100 करो, उसमें तुम 2 मैच खेल पाओगे इंडिया में. उसमें तो यार विहारी को लेना चाहिए. विहारी शुड बी प्लेइंग एट नंबर 4 पोजीशन, नॉट इवन नंबर 5, द वे ही इज प्लेइंग. साला उसको तो अनफॉर्चुनेट है, वो इंडिया में साला उसको लिया नहीं, अफ्रीका भेज दिया, और अफ्रीका में भी 3 मैच खिलाया नहीं. पागलपन है. नहीं उसको इंडिया में लोगों स्ट्रोक प्लेयर चाहिए. कुछ भी बोलो. 4 पे तुम कोहली को थोड़ी हटाओगे. कोहली को ऊपर भेजो. कोहली को अभी थोड़ा भाई. सचिन तेंदुलकर ने कभी 3 पे बैटिंग नहीं किया, तो कोहली क्यों करेगा? करना चाहिए. तो करना तो चाहिए बहुत कुछ ही. सचिन ने कभी 3 पे बैटिंग किया? ही नेवर बैटेड एट 3. जब तुम बट टेस्ट मैच में योर बेस्ट प्लेयर शुड प्ले एट 4. बैटिंग नहीं, best player should play at 4. Again, the common वो is कि the best player usually bats at 3. Best player तुम देख लो हिस्ट्री में, जो टॉप डॉन ब्रैडमैन, विवियन रिचर्ड्स, ग्रेग चैपल, अरे बेस्ट प्लेयर. सचिन तेंदुलकर started that कि best batsman batted at 4. He was उसके पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था बेस्ट प्लेयर. No, but I have an issue with that because Vivian Richards did not have a team like India. Brian Lara 3. Brian Lara छोड़ के Brian Lara is the only one who Brian Lara नहीं. रिकी पॉन्ड. No, टीम की बात कर रहा हूं मैं. टीम से 4-3 का क्या फर्क पड़ रहा है? तो उससे जाके मैं बता रहा हूं फर्क क्या पड़ता है. बिकॉज ऊपर के 2 विकेट गिर गए और सचिन भी आउट हो गए, तो पूरा टेस्ट मैच खाली. 2 डाउन के बाद यू आर ऑलवेज प्लेइंग अ लिटिल डिफेंसिव. नहीं वो लॉजिक मेरे हिसाब से, जब स्पेशली इंडिया हैड अ वेरी बैड ओपनर्स, राइट, then the best player should have batted at 3, but Sachin Tendulkar started that best player bats at 4. बाकी तुम देख लो, संगकारा used to bat at 3, रिकी पॉन्टिंग, संगकारा का तो बोल नहीं सकते स्ट्रॉन्ग टीम था. संगकारा batted at 3, जैक कैलिस batted at 3, टॉप प्लेयर सब batted at 3. Sachin Tendulkar is an exception. They can bat at 3, but again मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 डाउन के तो फिर तो ओपनिंग कर लो, अगर तुम्हारा टीम वीक है तो. वो नहीं, ऐसा नहीं है, बट वर्ल्ड में टॉप बैट्समैन तुम मैक्सिमम जगह पे 3 पे ही बैट करता है. देख लो ना, मेरे को लगता है कि 2 डाउन. हाँ, मतलब ये पैटर्न है, बट आई डोंट थिंक ये कॉन्शियसली डिसीजन, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है. आई मीन देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट ना. एवरीवेयर 3 पे क्यों करते हैं? एंड इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर चेंज द माइंडसेट, बिकॉज ये 4 पे हम लोग बोल भी नहीं. इसके पहले एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि बेस्ट प्लेयर 3 में करता है. गावस्कर वाज द ओनली एक्सेप्शन. बाकी सब कंट्री में वो लोग का बेस्ट बैट्समैन 3 पे आता था राइट फ्रॉम बिगिनिंग. हाँ, स्टीवन स्मिथ तेंदुलकर है नंबर 4 पे. हाँ, स्टीवन स्मिथ. विराट कोहली भी नंबर 4 पे है. विराट कोहली नंबर नहीं, और वो सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड इट, देन स्टीव वॉ आल्सो स्टार्टेड कमिंग एट 4 ना. स्टीव वॉ तो पहले 5 और 6 पे खेलता था. स्टीव वॉ आल्सो केम एट 4. स्टीव वॉ आल्सो केम एट 4. वही बोल रहा हूँ,
इसके पहले ऑल बेस्ट बैट्समैन आई थिंक योर बेस्ट प्लेयर टेस्ट मैचेस में तो ओवर्स का कुछ चक्कर नहीं होता ना, तो आई थिंक यू शुड प्ले अ लिटिल डीपर. इफ यू कैन प्ले एट 4 देन प्ले एट 4 मेरे हिसाब से तो. नहीं, बिकॉज वो न्यू बॉल का शाइन, मेरे हिसाब से देयर माइट बी अ केस, मेरे हिसाब से देयर माइट बी अ केस कि वो न्यू बॉल का शाइन चले जाए. थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं, होना मेरे हिसाब से. नहीं मेरे होना चाहिए. एक बात बताता हूँ कि जो भी तू बोल रहा है ना, ये सब रिलेटिव है. बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग विथ 5 बॉलर, आई थिंक इट्स बेटर कोहली प्लेइंग एट थर्ड एंड नॉट फोर्थ. अगर तुम 4 बॉलर से खेलते हो तो कोहली फोर्थ से खेलेगा तो चलेगा, बिकॉज देन यू हैव बैट्समैन टू कम, करेक्ट. अदरवाइज तू चौथा खेले. The player with the best defense या सुपीरियर डिफेंस शुड प्ले एट नंबर 3. मेरे को सब लगता है कि जो सबसे सिक्योर है, कोहली तो बेटर ही है, सबसे सिक्योर डिफेंस है ना. और मेरे को तो कि राहुल द्रविड़ हैज द मोस्ट सिक्योर डिफेंस, दैट्स व्हाई ही प्लेड एट नंबर 3. मेरे को ऐसा लगता है हमेशा से. तो द गाय विद द मोस्ट सिक्योर डिफेंस, बिकॉज ओपनर्स के बाद, बिकॉज ओपनर्स बहुत बार आउट हो जाते हैं ना, तो यू आर प्लेइंग द न्यू बॉल. आई फील जो न्यू बॉल को बेस्ट खेलता है. नहीं प्रिंस, बट उस लॉजिक से 89 से 96 पे तो सचिन शुड हैव बैटेड एट 3, राइट? 89 से 96 तक तो कोई और अच्छा नहीं था ऐसे डिफेंस वाला. वो तो यंग था, वो तो नंबर 6 पे बैटिंग करता था, उसको तो बहुत लो, बिकॉज वो तो सीनियरिटी थी. इंडियन टीम में सीनियरिटी का प्रॉब्लम है. इंडियन टीम वही है कि उसने, सचिन तेंदुलकर डिसाइडेड ही यूज्ड टू बैट एट 4 एंड ही स्टार्टेड द ट्रेंड. देन उसके बाद से भी जैसे स्मिथ आया 4 पे. टेस्ट मैच में तो नंबर 6 बैटिंग करता रहा वो. टेस्ट मैच में ही बस बैट नंबर 6. तेंदुलकर जब आया, जब वो मेन प्लेयर बन गया, तब से वो तो 4 में ही आ गया ना वो तो. But that was much later. हाँ, मच लेटर मतलब क्या? सचिन तेंदुलकर 1993 फर्स्ट 4 साल उसने नहीं किया. 1993 से जब इंग्लैंड इंडिया आया, he started batting at 4 and he stuck at 4. 1993 5 and 6 becomes even more difficult. I feel 5 and 6 बैटिंग करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है. 4 साल जो है, 4 साल उसने खेला 5 और 6 पे, राइट? 1993 से इंडिया, साउथ अफ्रीका से इंडिया आया वापस, इंग्लैंड आया इंडिया में, he batted at 4. उसने मद्रास में 165 बनाया. उसके बाद he's always batted 4. उसके बाद उसने चेंज नहीं किया ना, 4 पे बैटिंग किया. हाँ, बट इनिशियली वो लोअर डाउन द ऑर्डर इसलिए था क्योंकि वो टीम चाहती थी उसको लोअर, क्योंकि वो यंग प्लेयर को हमेशा 5 and 6 में खिलाते थे. हाँ, नहीं, दैट आई एग्री, बट वही है 4 पे. इसके पहले द बॉटम लाइन इज, पूरा वर्ल्ड में वो लोग इसलिए बोलते हैं नंबर 3 ऑलवेज दे कंसिडर इट एज द मोस्ट क्रूशियल. अपना बेस्ट बैट्समैन को नंबर 3 पे ही खिलाते थे फ्रॉम टाइम. मेरे एक्चुअली इसका आउटलुक, मैं नहीं कह रहा कि नंबर 4 इज द डिफिकल्ट, the most difficult. It is not, but I feel that is the best for the team. Your best player should get that comfort. I somehow feel it depends on the team. अगर मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारा टॉप ऑर्डर वीक है तो तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन हैज टू बी पुश्ड अप. अगर तुम्हारा टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, then you can have your best batsman at 4 because then he can control the play later. बोल रहे कि ओपनिंग तुम्हारा ऊपर का बैटिंग स्ट्रांग है. जैसे जब ये लोग खेलते थे, आई थिंक इंडिया का जब बेस्ट टीम था जो भी 2000s में, उसके लिए सचिन का नंबर 4 वाज परफेक्ट बिकॉज वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ वर देयर एंड देन सचिन कुड कंट्रोल द मिडिल ऑफ द इनिंग्स, राइट, पूरा. बट अगर तुम्हारा टॉप में वीक है, इफ until India got Virendra Sehwag in 2001, Sachin, India should have tried Sachin batting at 3 because थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है ना, क्योंकि सचिन के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा होता है ना. जब फटाफट दो विकेट जल्दी गिर गया तो और प्रेशर पे खेल रहा है सचिन. अगर एक विकेट, मेरे को लगता है कि जो स्टेम द फ्लो, दैट इज द होल लॉजिक. जो बेस्ट प्लेयर होता है ना, जो बेस्ट प्लेयर होता है और जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है एंड वो उस फॉर्म में है, आई फील कि अगर 3 and 4 में और उसका से भी मैटर करना चाहिए, बिकॉज उसका माइंडसेट भी मैटर करना चाहिए. इफ ही इज मोर कंफर्टेबल एट 4, यू शुड मेक हिम प्ले. मैं माइंडसेट सब ठीक है, मैं बोल रहा हूं द लॉजिक ऑफ प्लेइंग बेस्ट बैट्समैन एट 3, दैट इज व्हाट हिस्ट्री में सब लोग वही बोलते थे. 3 पे इसलिए खिलाते थे क्योंकि I agree with the logic. कि maybe he is the most equipped to play at that position. But what I'm saying is कि in terms of effectiveness and the probability of scoring big runs, I feel you are shielded from the new ball a little bit, and you, because you are a long innings player and you will maximize your output. नहीं, but again, I mean, उसका counter ये है कि you will be under more pressure क्योंकि your team will be 2 down. इससे अच्छा जब 1 down है, you can stem the flow from 1. हाँ, नहीं. हाँ, प्रेशर है, बट प्रेशर तो सचिन पे वैसे भी होता था. प्रेशर की बात नहीं कर रहा था. मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिवनेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर रहा हूँ. सो who do I want at that position who will maximize of not getting out? I feel
a lesser player, if he plays with the old ball, he can still get out. नहीं, but उस लॉजिक से तो देन उसको और एक स्पॉट नीचे कर लो 5 में. नहीं, टेल के साथ खेलना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा. लक्ष्मण का इनिंग्स was very difficult. 6 भी है 7 भी है, तो उसकी I think it's up for debate, but 3 का लॉजिक वही था कि you can stem the flow earlier, and I mean unless you can be an opener, but world के जो best players है, if you really look at it, there have been very few who have been openers, because opening is the most difficult job, right, in test cricket. फिर तो वो करना चाहिए था, फिर तो record wise वो तो हाँ even record wise, right, but वो test opening जब तुमने beginning से किया नहीं है, but वही है 3 पे करो तो you can stem the flow, तुम wicket रोक सकते हो एक wicket के बाद. हाँ. One thing I'd like to just add is Abhishek that you can't have a blueprint कि 3 पे best batsman को डालो तो it's going to be the best for the team. ऐसा नहीं, क्योंकि it depends on the temperament of that particular batsman also. वो वहाँ कहाँ पे comfortable feel कर रहा है और कहाँ पे he can thrive, you know. नहीं, but again, you know, comfortable का I don't agree. वो comfortable तुम तभी होते हो जब तुम once you reach a stature, then you will worry about somebody's comfort, right? जब when you are new in the team, whatever works best for the team, you have to do that. Comfort वगैरह तो आता है जब बाद में तुम when you have proved it, जैसे भी when you're new, but when you're new you don't have a say anyway. When you're new, Talking about Sachin Tendulkar, don't you think he would? No, when you're new, you anyway don't have a say. Correct. When you're new, you don't have a say anyway. Just be happy that you get a chance to wear the cap and play, but yeah, exactly. When you're new, नहीं, जैसे वो तो नंबर 4 में 4 साल बाद आया ना. 96 के बाद Tendulkar batting at 4 was perfect because you know he could control the innings and top में इंडिया का अच्छा था. टॉप में ठीक हो गया. 96 में भी नहीं, 2000 2001 में ठीक हुआ. सचिन बचिन को जाने दो अभी. अच्छा नहीं था 96 में टॉप अच्छा नहीं था. हाँ, बट सचिन को जाने दो अभी. कोहली को नंबर 3 खेलना चाहिए. पुजारा को निकालने में उसका पूरा हाथ खेलेगा नहीं. वो साले को खेलना पड़ेगा. पुजारा को बिठा दिया और खुद आराम से खेल रहे हो. पुजारा को गिल को डाल दो. अभी जो हालत है हमारे बैटिंग की, विराट कोहली अगर बोले ना कि I need to wrap up. चलो let's close it. Thanks. Great discussion. We'll have another one soon. We are not going to, not have anything for the next 2 months like we have done in the past. But thank you. Hopefully, India team is going to come back strong. Fingers crossed. Hopefully, the missing elements in this team, we will find magical solutions. I mean, that's all we can hope as Indian sports fans. Thanks, guys, for joining. And again. Please subscribe to Cricket Shenanigans. We'll bring in more interesting topics, interesting discussions in the future. All right, guys. Thank you. Thank you. Bye. Bye.